now bow our heads in prayer, invoking the divine light of it. Can we please stand up? जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे कम लोग बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। Let's honor and welcome our esteemed guests with a gesture of respect and gratitude. Thank you, Shashikala. Now I invite Dr. A.M. Huxer to grace the stage and present this bouquet to Mr. Divya Sukta Das as a symbol of our esteem. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Nihal Bhaiya to present the bouquet to Dr. Ayin Trivedi sir, Head of Power Electronic Department, as a symbol of our esteem. Now it is my immense pleasure to invite Professor Andy Mehta sir to the stage to inaugurate today's session with their profound insights. So welcome him with a big round of applause. Good afternoon to all of you. Again, I believe that after the lunch session,
यू आर बिकम लिटल डूजी और एसी भी चालू है तो ऐसा लगेगा कि भाई चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं. Fine. But in morning session, we have given the inspiration by the so many different distinguished guests. And one of the guests just arrived in our program. He is from the Vice Chancellor of HT University. And he elaborated about the 5 L. किसी को याद है? नहीं है याद है? वापस से लिख लेंगे. हाँ बोलो. अरे बोलो तो सही. अरे कितने हुए? हाँ. और दो तो चीजें करनी है ना. लेक्चर और लेबोरेटरी. फाइन. ओके. तो यहाँ पर ऐसा है कि लाइफ में ये चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट है. So we are very much pleasure today over here. We have with us uh, Sri Divya Sukta Das. And what is the big thing for us? He is also an engineer by the profession. And then later he joined the uh, Hare Krishna movement. And as we are all knowing, it's a big organization and giving the Krishna consciousness to the every part of the world. So today he will give us about the basic sense of life and as well as the some topics of the leadership also. So how leader will be and how we can be a good leader. Okay, so these things we are learning during this induction phase, but it is not uh, just a beginning. We have to cultivate these old good habits in our day-to-day life. We want try to imbibe all these virtues along with your regular studies will start after the 14th of July. So with this note, I will heartily welcome Vijay Sukta Das over here and we will take the benefit of his lecture and whatever presentations he will make, you can also take the benefit out of it. That is the hope. All the best. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Anu Trivedi, sir, to say few words for our expert. So welcome him as well with a big round of applause. Good afternoon to all of you. Welcome to Senior Sukta Das. દેવવ્રતની એટલા માટે લીધું કે મોટા સાહેબે કીધું કે એકદમ એટલે કે એક ઇન્ટરનેટ what we are doing એટલું ક્લેરિફિકેશન આપણે કરવા માંગતો હતી કે કુદરત જેમ પોતાના રિસોર્સિસ દરેક વ્યક્તિ માટે એક સરકાર આપે છે એ રીતે અહીંયા અમે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ કે કોલેજમાં 4 વર્ષ દરમિયાન અમને એક સરખી શક્તિ એક સરખી ઉર્જા એક સરખા વિચારો એટલી you can identify કે કયા વિચારોને આપણે સારા ગણી શકીએ કયા વિચારોને આપણે નબળા ગણી શકીએ. So we are calling all the personalities from every walks of life. બરાબર. તમને ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે એક ગ્રુપ આવે છે બીજું ગ્રુપ આવે છે ત્રીજું ગ્રુપ આવે છે. These are the social lighters. જનરલી તમે રીલ જોતા હોય તો સોશિયલ મીડિયા જોતા હોય તો you can see કે બધા એનિમલ પર્સન્સ છે એને એટલી જ જરૂર છે કે you should make input and increase mentality where you are going to become an engineer. And this is transparent aim from our side also when we are organizing the event. We are very clear that this thought should come to you. How to judge it, how in a spiritual journey, in a working journey, in a professional journey. This is only our aim. And that's why I am making it clear from my side. બીજી સપ્તદાસજી છે એ હરે કૃષ્ણ મોમેન્ટ સાથે જોડાયેલા છે મિકેનિકલ એન્જિનિયર છે ઇન્ડસમાંથી દેશ બદલી છે
અને ઘણા વર્ષો ડેકેડ ઉપરાંત એ નિર્માણ સાથે જાય છે. અત્યારે વિદ્યુતીમાં છે, ઇલેક્ટ્રિકના સિટીમાં જાય છે, સીડીયુમાં અને ત્યાં રેગ્યુલરલી વિઝિટ કરે છે. રેગ્યુલર એમના ગ્રુપ છે યુવાનોના કે જે સારા વિચારો ધરાવતા ઉપરાંત સારી વ્યક્તિઓ છે એવા લોકો એની સાથે જોડાતા હોય છે. તમે શું કરો છો તે અમે જોવાવાળા નથી. તો તમારે શું કરવું જોઈએ એટલું એ અમે આપને બતાવી શકીએ છીએ. ધેટ ઇઝ ઓનલી ટાઈમ. આપણે એમને સાંભળીએ ઘણીવાર 100 વાક્યની જે રજૂઆત હોય છે એ કદાચ 1 મિનિટની રીલમાં, 1 મિનિટની ફિલ્મમાં કે 1 મિનિટના પ્રેઝન્ટેશનમાં એનો સમાવેશ વક્તાઓ કરતા હોય છે. ગીતા જ્ઞાન છે, સ્પિરિચ્યુઅલ જ્ઞાન છે, સનાતન ધર્મ છે. So from our platform, we are thinking that all the religion, કોઈ પણ ધર્મ હોય, કોઈ પણ સંપ્રદાય હોય, બધા એક સરખા છે. તો એમનો મૂળ મંત્ર છે કે તમે સારા હ્યુમન બનો. That is universal human value. And we are working on the same line which God has given us. તો તમે સારા માણસ છો તો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાગી જાય. તમે સારા માણસ નથી તો what you should be intended to do, that thing is given by our speaker. Thank you very much for being here, and we will try to listen in carefully. Thank you very much. Thank you so much, sir. Your heartfelt welcome has touched us all and perfectly aligned with our purpose for gathering. The lesson that we are proud is our dharma, because after the Aarti, the voice Vishnu Ka Kalyan Ho comes only from temple. Thank you for guiding us into the session with such a warmth and wisdom. गीता में श्री कृष्ण ने खूब कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। So, the moment we all have been wisdom of Bhagavad Gita with Mr. Divya Sukta Das. Mr. Das has inspired 250 plus schools and top institutions like Nirma, LD, VGC, GU, and Infosys. हरे कृष्णा। आप लोग का आवाज नहीं आया ठीक से। हरे कृष्णा। तो हम लोग भी जो है इस्कॉन की ओर से पीछे का लाइट ऑन कर सकते हैं, वरना नींद आ जाएगा फिर। तो आपका उत्साह देख के तो मेरा भी उत्साह बढ़ गया फिर तो हम लोग जो है इस्कॉन की ओर से आपका जो कॉलेज है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपके प्रिंसिपल सर एवं मिस्टर इंद्रनील सर, उनके हम आभारी हैं कि हमें इतना अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक्चुअली एवरी ईयर हमारा इस तरीके से इंडक्शन प्रोग्राम में हमें से हमारे वैल्यूज जो है वो शेयर करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो है कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ दी बोथ दी वर्ल्ड। जैसे आप एजुकेशन में यहाँ पे विश्वकर्मा, इट इज वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज इन गुजरात, तो वहाँ से आपको बेस्ट एजुकेशन मिल सकता है।
और भगवत गीता ऐसा किताब है कि जहाँ से हमको बेस्ट वैल्यूज मिल सकती है। तो दोनों चाहिए जो आएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगला 1 घंटा जो है आप अपना फुल अटेंशन जो यहाँ पे देंगे। देखो मेरा तो क्या है, मैं तो अभी आया हूँ और 1-2 घंटे बाद में चला जाऊंगा। पर उस 1 घंटे में हम जो चर्चा करने वाले हैं, तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनेंगे एवं सोचेंगे उसके ऊपर, सुनने के बाद सेकंड सोचना, तो आपके जीवन में काफी पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। और ये एंटायर प्रेजेंटेशन जो है, इसमें मैं आपको जो भी दिखाऊंगा तो उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। मतलब कई बार ऐसे लोग आके बोलते हैं ना, मेरे अनुभव से, मेरे विचार से, मेरे हिसाब से, मतलब वो अपने ओपिनियंस अपना, वो भी अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। पर ये पूरे प्रेजेंटेशन में इसमें कहीं पर भी मेरा ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा विचार नहीं होगा। मैं जो भी दिखाऊंगा नीचे आपको रेफरेंस दूंगा कि भाई ये चीज कहाँ से लिया गया है। जिसको आप सबके पास एंड्रॉइड से इंटरनेट चलाना जानते हैं आप लोग, आप वेरीफाई भी कर सकते हो वो फाइल। तो मतलब बेसिकली मैं केवल उस चीजों पर लाइट डालूंगा, समझ रहे? मैं कुछ आपको नया बताने नहीं आया हूँ, वो चीज शायद आप जानते हो पर हम सोचते नहीं है उस बातों को। जानते तो है, जानना अलग बात है, उसके ऊपर सोचना एक अलग बात है। तो काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते होंगे, पर मैं आज बताऊंगा कि उसके ऊपर क्या सोचना है। और वो सोचने से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो टॉपिक है पिलर्स ऑफ लीडरशिप। तो अब देखो दुनिया में लीडर बहुत सारे हैं आजकल, कोई कमी नहीं है लीडर्स की। और आप भी आज नहीं तो कल लीडर बनेंगे। देखो दुनिया में हर एक व्यक्ति लीडर बनता ही है। उसका जो लीडरशिप का सर्कल होता है ना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो छोटा बड़ा होता है। अल्टीमेटली अब देखिए आप अपने फैमिली के लीडर तो बनेंगे, स्मॉलेस्ट सर्कल। और बाकी जितना आपका टैलेंट, जितना आपका स्किल, यू कैन गो अप टू द वर्ल्ड लीडर, इट इज अप टू यू। पर लीडर तो बनना ही है। तो बात यह है कि वो लीडरशिप का आधार पिलर्स क्या होने चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे। और वो क्यों चर्चा करेंगे, क्या जरूरत है उस चीजों का चर्चा करने का, क्योंकि आजकल दुनिया में लीडर्स की कमी नहीं है। बहुत सारे लीडर्स है, कमी किस चीज की है, उस लीडरशिप का क्वालिटी का। ये प्रेजेंट करें ना, चल नहीं रहा। हाँ हो गया। तो आप देखिए जो सारी कंपनीज आप देख रहे हैं, जाने पहचाने नाम है ना, एक भी अनजाना नाम नहीं है। और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं, देख रहे हैं आप, नंबर्स लिखे हैं नीचे। अब सबसे पहली बात, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, ये केवल और केवल यूएसए का डेटा है, ओनली जस्ट वन कंट्री। क्यों यूएसए का डेटा लेके आए हैं, क्योंकि यूएसए में बिजनेस पॉलिसीज रेगुलेशन दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट है, वहां पर ही सबसे स्ट्रिक्ट है। अब उस देश में, अमेरिका, जहां पे इतना रूल्स एंड इतना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, उस जगह पे इन कंपनियों ने इतना पेनल्टी लगा है अब तक। जैसे अमेजोन को 133 टाइम पेनल्टी लग चुका है अमेजोन यूएसए में। और आउट ऑफ दैट 133 टाइम्स 85 टाइम जो पेनल्टी है, इट इज फॉर द सेम क्राइम। कैन यू इमेजिन 85 टाइम, मीन्स सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, सादी भाषा में बात करेंगे। Then I see you, Tata 52 times US penalty, Samsung 36, Sony, Apple, Nestle 60% unhealthy products. नेस्ले जितने प्रोडक्ट बनाता है उसमें से उसके 60% प्रोडक्ट्स आर प्रूवन, लेबोरेटरी मेडिकल प्रूवन अनहेल्दी, still all the products are being sold worldwide. क्या बताना चाहता हूँ, ये सब दिखा रहा हूँ, ये सब कंपनी को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ। आप पर्सनली मत लेना कोई भी चीजों को, प्रिंसिपल समझने का कि मैं क्या बताना चाहता हूँ डेटा से, कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, समझ रहे हैं ना, क्वालिटी, क्वालिटी जो है ना बहुत दिया हुआ है लीडरशिप का। तो लोग छेड़खानी कर रहे हैं, जैसे आपको नेस्ले 60, मतलब लोगों की, वो पैसों के लिए लोग की हेल्थ से छेड़खानी कर रहे हैं। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्यक्ति जीवन का, हेल्थ गया तो सब कुछ गया।
से छेड़खानी हो रही है। अब सोचो आप मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को पता, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट है तो नहीं होगी ये सब मालूम है, पर सब चलता है। क्वालिटी उस पे बात हो रही, पिलर्स पे बात हो रही कि लीडर बहुत सारे हैं, पिलर्स गायब है। क्या पिलर्स? ऑनेस्टी, compassion. You are confident of your product, then why are you withdrawing? Still they didn't accept, even today, till this day. बात है क्वालिटी उस लीडरशिप की कि आप कुछ पैसों के लिए लोगों की जान, लोगों की हेल्थ से खेल रहे हो आप, विच इज एब्सोल्युटली कहते ना अनएक्सेप्टेबल। तो अंदर नहीं जाना क्या हुआ था, समझ रहे हैं प्रिंसिपल, हम क्वालिटी पे बात हो रहे लीडरशिप का। ये जो भी हुआ जस्ट एग्जाम्पल से, ऐसे पूरे सेमिनार में कई साल में एग्जाम्पल्स दूंगा, तो आप एग्जाम्पल को पर्सनली मत लेना कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, किसी का निंदा कर रहा हूँ, नीचा नहीं, वो बात नहीं है। वी आर डिस्कसिंग हियर प्रिंसिपल्स, and to make you understand that principle properly, I will use some examples from real world or modern scenarios. ठीक है? तो पिलर्स जब आपके पास होते हैं, और या तो लीडरशिप का पर्पस है ये चीजें अचीव करना आपके लिए, और आप जिसको लीड करने वाले हैं उन सब के लिए। क्या क्या है? हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड पीस। ये तीन चीजें मिलना चाहिए लीडर बनने के बाद, और अल्टीमेटली आप फैमिली के लीडर बनने ही वाले हैं, तो मतलब ये चीजें आपको मिलनी चाहिए। और आप जिसके लीडर हैं, जिस ग्रुप के, उस ग्रुप को भी ये तीन चीजें आपको देनी चाहिए, आपकी वजह से उसको मिलना चाहिए, देन यू आर रियल लीडर। अदरवाइज वी आर जस्ट सो कॉल्ड लीडर। तो क्या होता है, अब देखिए उदाहरण जो है रामायण महाभारत, ऐसे वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे आप, तो ये उदाहरण बार बार आता है वहां पे। बहुत छोटा सा, बहुत कहते हैं ना सिंपल सा एग्जाम्पल है, पर इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड हाईली रिलेवेंट। तो आप देखो, ध्यान से आंसर दीजिएगा, छोटा सा ही प्रश्न है, पर स्टिल इट इज ट्रिकी क्वेश्चन। मान लो ये रथ के दो पहिए हैं, मान लो एक पहिया जो है वो नहीं चल रहा है, तो आपको क्या लगता है रथ चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इधर से किसी ने बोला कि चलेगा, एब्सोल्युटली राइट। कई लोग मना कर रहे थे, पर चलेगा ना। आप सोचिए, एक पहिया मान लो बंद है, दूसरा चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? रथ भी ऐसे गोल गोल नहीं चलेगा, चलेगा ना। पर वो कुछ काम का है क्या? ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल, हाईली रिलेवेंट, हाईली, हाईली से ऊपर कोई वर्ड नहीं है, वरना वो लगा दो, इतना रिलेवेंट हमारी लाइफ से कि रथ चल रहा है पर वो कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए इसको नहीं बनाया गया है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए उसका पर्पज है, पर्पज लॉस्ट हो गया, चल रहा है पर उद्देश्य नष्ट हो गया क्योंकि वो गोल गोल चल रहा है। उसी तरीके से अगर सेम इसको गोल के पास जाना है, तो दोनों पहियों का बैलेंस में, आगे पीछे भी नहीं, एक एग्जैक्ट सिंक्रोमेश, मैकेनिकल में आता है सिंक्रोनाइजेशन, तो सिंक्रोमेश में जाना चाहिए, तभी उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज दिस रथ इज यूज। सेम उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी जो है ना, दो ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक होता है हमारे लाइफ का ये मटेरियल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज मतलब आपके अंदर जो टैलेंट होगा, स्किल होगा, डिग्री आप लेंगे, या जो भी आगे चल कर नए स्किल सीखेंगे, सब कुछ जो है ना केवल एक ही ट्रैक है हमारे लाइफ का, वो केवल एक ही ट्रैक है। हमारे लाइफ का दूसरा पहिया होता है ये स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं द साइंस ऑफ इमोशन, द साइंस ऑफ रिलेशनशिप। तो आप सोचिए कि अगर हम इसके ऊपर केवल ध्यान दें, ये तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो यहीं से मिलेगा आपको, यहाँ से तो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान यहीं से आएगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, वो चॉइस नहीं है हमारे पास, दैट वी हैव टू डू। पर हम इसको ऑप्शनल बना देते हैं, अरे गीता नहीं पढ़ेगी क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप देखो, आप 12वीं पास करके यहाँ तक पहुंच गए, क्या आप में से कितने स्टूडेंट इतने हैं कि आप हर रोज कोई ना कोई स्पिरिचुअल किताब पढ़ते हैं, चाहे रामायण, चाहे महाभारत, चाहे गीता, यस सी 1 2 3 4 5 6 सी। आपके सामने है उदाहरण, ये पहिया बंद है, केवल 6 लोगों का घूम रहा है, वो कितना घूम रहा है वो भी उनको मालूम। पर एटलीस्ट, नहीं हंसने जैसी बात नहीं है, दे आर बेटर देन ऑल ऑफ अस,
because at least they are trying to move that way, they are better. तो क्यों हमने इसको ऑप्शनल बना दिया कि गीता नहीं पढ़ेंगे, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, नो प्रॉब्लम। जीवन चल रहा है ना, तो आपको बताता हूँ अभी वो जीवन कैसा चल रहा है। एक पहिया अगर ये बंद होगा तो बुरा नहीं मानना कृपा करके, कि आप देखोगे मैं 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, देन अच्छा जॉब मिल गया, कोई मैंने अच्छा कंपनी भी बना दिया, या मैं फेमस हो गया, वॉट एवर, वो सब होगा। पर आप देखोगे कि 10 साल पहले भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था, आज भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। अब वो देखोगे कि आज भी छोटी छोटी कोई अनफेवरेबल चीज पे इरिटेट हो जाता था मैं 10 साल पहले, आज भी हो रहा। दिमाग वही का वही है। तो आगे कौन जा रहा है? आपका डिग्री, आपका टैलेंट, आपका बैंक बैलेंस, आपका जो फैसिलिटी है, गाड़ी बंगलो, वो सब आगे जा रहा है। बट मेंटली कॉन्शियसनेस इट इज देयर ओनली वेयर इट वाज 10 years अगो। इसको कहते हैं रथ गोल गोल घूम रहा है, कि एज अ पर्सन, एज अ लाइफ, यू आर देयर ओनली वेयर यू वेर अर्लियर, बट मटीरियली यू आर प्रोग्रेसिंग। एंड इवन वर्स्ट, आप देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे आके बोलते हैं कॉलेज में कि सर हमें अकेलापन लगता है, देर इज नो वन टू whom आई कैन शेयर माई हार्ट, जिसको मैं बता सकूं मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरी भावनाएं क्या है, देर इज नो वन। और जो है दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड मी, जो है वो समझ नहीं, दे आर फीलिंग। तो स्कूल में थे तो ऐसा फीलिंग नहीं आता था, नाउ वी आर फीलिंग, सी मतलब गोल गोल भी नहीं चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है, कि मेंटल प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, बट स्टिल यस वी आर एडवांसिंग। व्हाट? अवर बैंक बैलेंस, अवर एसेट्स, नॉट वी। इसको कहते हैं गोल गोल घूमना। यू हैव सक्सेस but you don't have successful life. Life and success both are different. Success is a different thing, life is a different thing. कई लोग सक्सेस को ही लाइफ समझते, इट इज नॉट लाइफ। सी दोनों का क्या रोल है? पहला पहिया जो है ना, वो ये सब देगा हमको, गिव्स यू लाइफ स्टाइल, रोटी कपड़ा मकान, जो मैंने बताया आपको। अब मान लो आपको सब कुछ मिल गया, रोटी कपड़ा मकान सब आपका वेल सेट है, बड़ी कंपनी में आप बड़े पोस्ट पे है, बड़ा बैंक बैलेंस है, सब अच्छा घर है, हो गया। उसके बाद आपको नहीं लगता कि ये भी सीखना पड़ेगा? वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ। जैसे आप दुनिया में, कैन यू नेम अ सिंगल पर्सन इन एंटायर ह्यूमन रेस में से जिसके लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आया है? एक व्यक्ति का नाम पूछ रहा हूँ खाली, एंटायर ह्यूमन रेस, अभी प्रेजेंट वाले नहीं, जो मर गए उसमें से भी ले सकते, नॉट अ सिंगल पर्सन टिल टुडे सिंस द डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप एक्सेप्शन है कुछ? मतलब जितने पृथ्वी पर आज तक पैदा हुए हैं, सबने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो मतलब हम क्या अपने आप को एक्सेप्शन समझ रहे कि नहीं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? प्रॉब्लम्स विल बी देयर, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी टुमारो, मे बी आफ्टर 2 year 5 year टेबर, इट विल बी देयर, प्रॉब्लम्स विल बी देयर। अब सवाल ये है कि जब वो प्रॉब्लम्स आएंगे उस समय पे हम क्या करेंगे? उस समय पे जो है ना, हमारा डिग्री है, हमारा बैंक बैलेंस है, वो काम में नहीं आएगा, वो सब वहीं का वहीं रहेगा। उस समय पे आपको क्या चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, कि अच्छा ये मेरा जीवन का जो नेगेटिव परिस्थिति है, ये सिनारियो, इसमें मैं क्या करूं? अगर रामायण महाभारत गीता ये सब पढ़ा है तो अच्छा अर्जुन ने ऐसा किया था, ओके, युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया था, अच्छा ओके समझ में आया, या दुर्योधन ने ऐसा गलत किया था तो ऐसा एंड हुआ था, मतलब दूर रहो बिगिनिंग से ही। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एग्जाम्पल्स है उस स्पिरिचुअल किताबों में, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि वो नॉवेल है भगवत गीता को, कि किसी ने लिख दिया व्यास देव ने नॉवेल, नॉवेल नहीं है। जैसे हैरी पॉटर है, आप उसमें से कुछ सीख नहीं सकते, और सीखेंगे तो उसका वैल्यू कितना है भगवान जाने, क्यों? क्योंकि वो कल्पना है, वो आप वहां से सीख के कुछ अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, पर रिजल्ट क्या आएगा? नो वन नो। क्यों? क्योंकि वो जस्ट इमेजिनेशन थे वो। पर ये जो स्पिरिचुअल किताब है वो इमेजिनेशन नहीं है, वो घटनाएं हुई है सही में। इसीलिए आप देखो स्कूल में इतिहास पढ़ाते हैं, पता है क्यों पढ़ाते हैं? समाज विद्या पढ़ते थे
इसका पर्पस कई लोगों को पता नहीं रहता, सोचते हैं अरे यार इतने बड़े बड़े युद्ध हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये युद्ध उसने ये किया। इतिहास इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि तुम इतिहास को रिपीट ना करो। इतिहास पढ़ाने का ये पर्पस, बाकी क्या लेना देना। हम पूरा प्राइमरी में 10 बार 10वीं तक समाज विद्या पढ़े, पूरा यही पढ़ाते थे किसने क्या किया किसका क्यों पढ़ाते, कोई रिलेशन नहीं है उसका, देखा जाए तो ऐसे टेक्निकली बहुत बड़ा रिलेशन है। तुमको उसमें से सीखना है कि देखो किसने क्या गलती किया था, क्या अंजाम हुआ, और किसने क्या सही किया था, क्या अंजाम हुआ। वही पर्पज, और कोई पर्पज नहीं इतिहास पढ़ाने का, ओनली पर्पज, so that we can learn from their mistakes and their good things। तो अगर हम रामायण महाभारत ऐसी किताबें नहीं पढ़े हैं तो लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगा उस समय पे कैसे डिसीजन लेंगे, और जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आता है स्ट्रेस। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन स्ट्रेस का, वेरी सिंपल, कि उसको पता नहीं है अभी क्या करे, इसमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो चले जाते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे या वट एवर, चलो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, या हाउ टू ओवरकम रिलेशनशिप प्रॉब्लम, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंडिंग। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो यूट्यूब से पूछ रहे, गूगल से। आपको पता है यूट्यूब गूगल का मालिक सर्गेई ब्रिन को फाउंडर, उसने 22 अफेयर किए हैं, 2 शादियां की है, दोनों डाइवोर्स, तीसरा ढूंढ रहा हूँ वट एवर। वो मालिक है उसका यूट्यूब गूगल, उसको जाके पूछते हैं रिलेशनशिप कैसे ठीक करे। भाई ये क्या मतलब, कौन से दुनिया का लॉजिक है यार। अगर उससे ठीक हो जाता तो वो क्यों 22 अफेयर किया फिर, और 2 शादी किया, दोनों टूट गई। वो तो खुद ही मालिक है यूट्यूब गूगल का, को फाउंडर लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन। तो वी आर सर्चिंग सॉल्यूशन गलत जगह पे, वहां सॉल्यूशन मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा, मिलेगा तो भी, क्योंकि मालिक का कहते हैं ना, समझदार को इशारा काटने से। अगेन डोंट टेक इट पर्सनल, अगर आपके फेवरेट है वो हीरो है तो डोंट टेक इट पर्सनल। वी आर बैक टू कम टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सॉल्यूशन इज नॉट देयर, solution is there but it is somewhere else, not in that YouTube Google और इंटरनेट। तो वे ऑफ लाइफ देन मटेरियल नॉलेज हमें क्या देता है, क्वांटिटी। अगर आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत यू आर वेरी स्किलफुल रिसोर्सफुल, देन आपको बहुत सारा रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, एक नहीं 10 गाड़ी हो जाएगा, 10 बंगले हो सकते हैं, आप वर्ल्ड फेमस, क्वांटिटी समझ रहे हैं ना बेसिकली। तो देखिए ये अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, जिसे मैंने देखो रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, हर एक चीज वेरीफाई, मतलब डिसएग्री नहीं कर सकते मैं जो बता रहा हूँ, आपको एग्री करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है। आई एम जस्ट थ्रोइंग लाइट ऑन दैट फैक्ट। अमेरिकन सरकार बोल रही है कि अमेरिका में हर 4 में से एक व्यक्ति जो है वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा सुनने के बाद, 4 में से एक व्यक्ति, जस्ट हाउ डेंजरस। अमेरिका में बहुत हाई सैलरीज है, नीट एंड क्लीन रोड, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स एंड व्हाट नॉट, बट सी द मेंटल कंडीशन ऑफ देयर सिटीजन। इसको कहते हैं रथ को गोल गोल घूमना, एक पहिया तेज जा रहा है, दूसरा पहिया बंद है, तो इसका एंड रिजल्ट ये होता है जो सरकार बोल रही है। देन ये तो अमेरिका, ये आपको ग्लोबल डेटा, ये ग्लोबल है। कहाँ से लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से। 1999 से 2025 तक पिछले 25 सालों में सुसाइड रेट कितना बढ़ा है। वी आर एडवांसिंग बट वी आर एडवांसिंग हियर ऑल्सो इन सुसाइड रेट। तो अगर दुनिया में सुख सुविधा बढ़ रही है, कंफर्ट बढ़ रहे हैं, देन द क्वेश्चन इज व्हाई पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। मतलब ऐसा सुना कि सुसाइड नोट में मिला, अरे बहुत खुश था इसलिए सुसाइड कर लिया, ऐसा मिला आज तक सुसाइड नोट किसी का? अरे बोले क्या खुशी था, ओ क्या मजा आ रहा था, इतना मजा, मर जाते हैं यार। तो कई बार डाउट होता है लोगों को, अरे सर ऐसे कैसे सुसाइड बदला, मतलब कुछ मजा आ रहा होगा, तो इसलिए पूछ रहा हूँ ऐसा कुछ मतलब सुना कभी नोट ऐसा सुसाइड वाला, मतलब प्रॉब्लम से ही करते हैं ना, तो समझ रहे हैं ना बात को। और एज ब्रैकेट देखिए आप, ये सबकी बात नहीं हो रही है। 10 साल से 34 वालों की, मतलब 10 से 25 जो है वो लर्निंग फेज है, एंड 25 से 34 जो है वो प्रोडक्टिव एज है। तो लर्निंग एंड प्रोडक्टिव में ये हाल है।
इसीलिए सीरियस डेटा है ये। देन अगेन WHO, अकेले डिप्रेशन की वजह से इतना लॉस होता है दुनिया को एन्युअली 31 to 51 बिलियन, एवरेज 40 बिलियन मतलब अराउंड 3-3.5 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है दुनिया में केवल और केवल अकेले डिप्रेशन के कारण। अब उसमें आप स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी एंड रिलेशनशिप इश्यूज सब डाल दोगे तो ये लॉस कहाँ जाएगा? कैन यू इमेजिन? इट विल बी इन ट्रिलियन, इट विल बी इन ट्रिलियन। तो प्रॉब्लम तो बता दिया WHO ने कि ये प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन भैया? दे डोंट नो। हाँ भैया एंटी डिप्रेशन पिल है, खा लीजिए, या काउंसलिंग सेशंस करते हैं डॉक्टर से, भैया काउंसलिंग करो ठीक हो जाएगी। आपको क्या लगता है डिप्रेशन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? इन स्पाइट ऑफ all those medicines and counseling sessions, depression is skyrocketing. That means that medicines and that sessions are not working. दूसरा सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो आपको बताता हूँ मैं, सॉल्यूशन इज देयर। सॉल्यूशन ऑलरेडी 5000 साल पहले दे दिया गया है, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो सॉल्यूशन हमें मंजूर नहीं। ध्यान से समझिएगा, डिप्रेशन प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो तो जब से इंसान बना तब से है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो सॉल्यूशन दिया गया है डिप्रेशन का वो हमें लेना नहीं है, हमें रिसर्च करना है कि नहीं रिसर्च करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। वहां पर मिस्टेक हो रहा है हमसे। क्यों मिस्टेक हो रहा है? वो उदाहरण देता हूँ महाभारत से। अब अगर भगवत गीता का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले मेडिकल साइंस के हिसाब से सबसे हैवी डिप्रेशन के 8 सिम्टम होते हैं, हेवीएस्ट 8 सिम्टम उसके बताए गए मेडिकल साइंस में। नाउ यू ओपन भगवत गीता, रीड फर्स्ट चैप्टर, अर्जुना वाज इन डिप्रेशन, और अर्जुन के सिम्टम दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में। आप वो सिम्टम पढ़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा, आठों के आठों सिम्टम अर्जुन की बॉडी में थे। मीन्स ही वाज हेवीली डिप्रेस्ड, नॉट नॉर्मली, हेवीली। देन उसके बाद क्या किया पता है भगवान ने? 30 मिनट तक कुछ बोला अर्जुन को, खाली कुछ शब्द बोले। बाकी वो तो भगवान थे, ऐसे सिर पे हाथ रख देते, कुछ कुछ नहीं किया कि सिर पे हाथ रख दिया, कुछ बभूति सर पे ऐसे बोलते ना, महाराज कुछ कर दो, ऐसे कुछ हो जाए मेरा। अरे तेरा क्या हो जाएगा? महाराज का कुछ नहीं हो रहा है, तेरा हो जाएगा। बभूति वभूति कुछ नहीं होता है ऐसे। भगवान ने 30 मिनट तक अर्जुन को कुछ बोला, कुछ शब्द बोले, केवल 30 मिनट्स ओनली, और अर्जुन हैवी डिप्रेशन में था। आफ्टर आफ्टर दैट 30 मिनट्स कृष्ण आस्क अर्जुन कि अर्जुन अभी बताओ क्या है तुम्हारे डिप्रेशन का सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। तो अर्जुन ने रिप्लाई किया, एग्जैक्ट रिप्लाई आपको बताता हूँ अर्जुन का। नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव। बोले नष्ट, समझ रहे हैं ना? नष्ट मतलब मोह, मोह, डिप्रेशन को मोह भी कहते हैं संस्कृत में। बोले चला गया डिप्रेशन, गायब, जस्ट इन 30 मिनट्स, विदाउट एनी काउंसलिंग, विदाउट, एक्चुअली काउंसलिंग कहेंगे इसको, 30 मिनट बोला तो, पर अलग तरीके का था वो, नो मेडिसिन एट ऑल। और फिर अर्जुन क्या हुआ अभी आगे क्या हुआ? बोले स्मृति लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब मिल गया, स्मृति मतलब बुद्धि नहीं, बुद्धि से भी एक स्टेज ऊपर, बुद्धिमता। बुद्धिमता मतलब क्या? दोनों में क्या डिफरेंस है, बुद्धि एंड बुद्धिमता? वो जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसको किस परिस्थिति में कैसे अप्लाई करना, उसको बुद्धिमता कहते हैं, विजडम कहते हैं। तो आजकल तो इंटेलिजेंस ही नहीं है, विजडम तो दूर की बात है बहुत। तो बोले ऐसे कैसे इंटेलिजेंस नहीं है? तो आप देखिए PhD किया है पर सिगरेट पी रहा है, आप इंटेलिजेंट आदमी कहोगे उसको? मूर्ख आदमी है वो। क्यों? मतलब कोई PhD के बाद बुरा हो तो बुरा मत मानो, वैसे आप तो PhD होंगे नहीं, स्टूडेंट है सब। लोग पर्सनली ले ले, इसलिए क्लेरिफाई करना पड़ता है बीच बीच में कि डोंट गेट पर्सनल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग जनरल थिंग्स हियर, टेकिंग सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो अगर वो इंटेलिजेंस होता उसके पास, तो वो जानता है सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है टोबैको कॉजेज कैंसर और स्मोकिंग किल्स वॉट एवर, वार्निंग लिखा है, स्टिल ही स्मोकिंग। तो फिर PhD क्यों है वो? PhD इसलिए है क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो PhD, बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसिंग पावर, नॉट बिकॉज ऑफ
हिज और हर इंटेलिजेंस। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति उसको नुकसान कर रहा है वैसा चीज कभी नहीं करेगा। शराब पी रहे हैं, डॉक्टर है ना, कितने सारे डॉक्टर शराब पीते हैं। तो वो तो खुद ही डॉक्टर है भैया, उसको पता है लीवर कितना डैमेज करेगा ये शराब, फिर भी पी रहा है। तो डॉक्टर बना है प्रोसेसिंग पावर के दम पे, इंटेलिजेंस के दम पे नहीं। कि इंटेलिजेंट व्यक्ति के सिम्टम नहीं है ये। इंटेलिजेंस व्यक्ति, तो ये तो विजडम इससे भी ऊपर का है, हाउ टू अप्लाई दैट इंटेलिजेंस। तो अर्जुन बोले वो मिला, इंटेलिजेंस से भी ऊपर का स्टेप मिला है मुझे, क्या, विजडम मिल गया। तो अभी क्या करोगे अर्जुन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो बोले करिष्ये वचनम तव, सिंपल है समझने में। आपने जो बोला ना पिछले 30 मिनट में वही होगा अभी। और क्या किया आप सब जानते हैं। जस्ट सी द सॉल्यूशन ऑफ डिप्रेशन। हेवीली डिप्रेशन में से आधे घंटे में भगवान ने बाहर निकाल लिया गीता बोल के। और ऐसा लड़े अर्जुन कि 18 दिन में स्टार्ट टू फिनिश। अभी तो आप देखो वॉर्स चल रहे दुनिया में, 2-2 3-3 5-5 साल से नो कंक्लूजन। अर्जुन ने 18 दिन में कंक्लूजन पे ला दिया वॉर को। बहुत सारे वॉरियर लड़े थे पर सबसे ज्यादा लोग मारे थे अर्जुन ने। डिप्रेशन में से कहा क्या काम किया उसने, केवल जस्ट 30 मिनट में। दिस इज द पावर ऑफ भगवत गीता। कहते ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ भगवत। ये है गीता। 30 मिनट इज इनफ। पर क्योंकि वो अर्जुन था, हाईली इंटेलेक्चुअल था वो अर्जुन, तो वो कर सकते हैं 30 मिनट। आप 30 मिनट गीता पढ़ोगे तो समझ, 30 मिनट तो सिस्टम लोड करने में जाएगा कि गीता पढ़ रहा हूँ। लोडिंग होता है ना सिस्टम चालू होने से पहले, तो वो होता है। तो उसके बाद थोड़े समय बाद, थोड़े सालों बाद अर्जुन को फिर से डिप्रेशन आया, जब वो व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम द्वारका। तो इस समय अर्जुन ने क्या किया जानते हैं, इस बार केवल ही जस्ट क्लोज हिज आईज एंड रिमेंबर। मनन शुरू किया कि अच्छा क्या बोला था भगवान ने उस डिप्रेशन के समय पे। जस्ट क्योंकि कृष्ण आप जा चुके थे नहीं अभी, केवल याद किया। एंड अगेन वहां लिखा है कुछ क्षण, कुछ क्षण मतलब 2-4-5 मिनट होता है संस्कृत में क्षण। चला गया डिप्रेशन। तो अर्जुन के लाइफ से मैं जो समझ पाया, सबका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, मैं जो समझ पाया उस इस एग्जाम्पल से दो चीजें मैं समझा कि ये डिप्रेशन या स्ट्रेस या जो भी वॉट एवर मेंटल इश्यूज है हमारे, ये रिकरिंग प्रोसेस है। मतलब लाइफ में बार बार आएगा। ऐसा नहीं कि अभी डिप्रेशन आया, स्ट्रेस आया, मेंटल आपने सॉल्व कर लिया लाइफ, ऐसा नहीं होगा। ये बार बार ये चीजें आपको हंट करेगी, हंट समझते ना, आपके पीछे आएगी। पर अगर एक बार सॉल्यूशन ले लिया है तो आपको खाली वो अप्लाई करना है, हर बार जाना नहीं है। अर्जुन गए नहीं, अरे कृष्णा वेर आर यू, डिप्रेशन, अरे वेर आर यू, नहीं नहीं, वेर आर यू नहीं। जस्ट याद करो क्या बोला था। दिस इज, क्या दुनिया में ऐसी कोई किताब है जो केवल याद करने में, एक बार सीखा है फिर केवल याद करना है एंड योर प्रॉब्लम्स आर गेटिंग सॉल्व जस्ट बाय रिमेम्बरिंग। दिस इज भगवत गीता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली भगवत गीता। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ गीता। क्योंकि कई बार मिसकंसेप्शन है गीता जो कि साधु लोगों का काम है या बूढ़े लोगों का काम है, दादा दादी पढ़ते हैं तो गीता पढ़ेंगे तो बाबा बन जाएंगे। अरे गीता पढ़ के वो लड़ाई किया तो बाबा बन जाएगा। मतलब अर्जुन गीता सुनाया, गीता सुनने के बाद अर्जुन बाबा बन गया था। अर्जुन क्षत्रिय था तो उसका धर्म क्या था, लड़ना। तो गीता सुन के उसने अपना धर्म फॉलो किया। तो आपका धर्म अभी का पर्टिकुलर धर्म में पढ़ाई करना, तो गीता पढ़ के आप वो करोगे, बाबा जी नहीं बन जाएगा। बल्कि पहला अध्याय में अर्जुन बोले थे बाबा जी बन जाता है, बोले इन सबसे मारने से जंगल में जाके भीख मांगता हूँ। तो आप समझ रहे, पूरा गीता के बारे में उल्टा है कि भाई अर्जुन पहले बाबा बनना चाहता था, गीता सुन के कर्तव्य किया। और समाज में उल्टी धारा बह रही है कि भी कर्तव्य तुम कर रहे हो, गीता पढ़ोगे तो सब छोड़ दोगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं, कहीं से तो लाते होंगे, वो भगवान जाने कहाँ से लाते हैं। भगवान भी, कृष्ण भी रो रहे होंगे, बोले यार क्या बोला था, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। और अर्जुन भी सोच रहा था यार, मतलब कहते ना लश्कर कहाँ लड़ रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है, क्या कुछ भी कर रहा है गीता के नाम पे। गीता ये करके देता है बैलेंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला स्लाइड। आपने सुना है कभी ये,
सोने की चिड़िया, सब लोगों ने सुना है। हाँ, ये तो प्रभु जी पहली बार सुन रहे हैं सोने की चिड़िया, क्या है बताइए थोड़ा सोने की चिड़िया, ऐसा तो नहीं है। भारत सोने की चिड़िया भी सुना है ना, सबने सुना, हाँ चलो इतना तो अच्छा है। तो अभी थोड़ा शॉकिंग चीज है, पर उसके आगे अगेन बुरा नहीं मानना, डोंट गेट पर्सनल। नहीं, कल निर्मा में स्टूडेंट पर्सनल हो गया था तो भारी पड़ गया था उसको भी और मेरे को भी, दोनों को। तो इसीलिए बीच में बार बार बोल रहा हूँ, डोंट गेट पर्सनल। तो अगर किसी को पूछा जाए, चलो आपको छोड़ देते हैं ताकि आप पर्सनल नहीं ले लो, बाहर आप बाहर किसी को आप जाके पूछो कि भैया भारत सोने की चिड़िया था, तुम मानते हो? बिल्कुल। अरे भाई क्या सोने की चिड़िया था? बिल्कुल सोने की हाँ तो रुको रुको थोड़ा सुनो दूसरा प्रश्न। तो उसको पूछो कि अब साबित करके दिखाओ आंकड़ों के बेसिस पे, भावनाएं नहीं कि हाँ हाँ हम तो थे ही ना भाई, भारत विश्व गुरु था, उसमें क्या चर्चा करना यार, नहीं चर्चा करेंगे। तो आंकड़ों के बेसिस पे मुझे साबित करके दिखाओ कि भारत सोने की चिड़िया था। और कितना बड़ा सोने की साइज, उस चिड़िया का साइज बताओ। और दूसरा क्वेश्चन, क्यों था? क्यों क्यों वाई? अगर आखिर भारत ऐसा था क्यों? कोई तो वजह होता है ना किसी चीज का। क्यों भारत सोने की चिड़िया था? उस दो प्रश्नों के जवाब दो, आपको नहीं मिलेंगे। 1 लाख लोगों को पूछेंगे तो शायद एक इक्के दुक्के बता पाएंगे, वो भी मुश्किल से। और यही कारण है कि जैसे अभी मैंने बताया तो केवल 6 ही विद्यार्थी ने हाथ उठाया, ये कारण है उसके पीछे का। अगर आप जान लेंगे ना कि भारत सोने की चिड़िया, कितनी बड़ी सोने की चिड़िया थी भारत, और क्यों सोने की चिड़िया थी, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, अगर उससे सोचेंगे ना कल से आप हर रोज गीता पढ़ोगे, आई कैन गारंटी दैट। पर हाँ सोचेंगे तो मैं तो बताऊंगा अभी, और आप सुन भी लेंगे। पर सोचेंगे तो यू विल बी फोर्स टू रीड भगवत गीता डेली, जस्ट बाय दिस सिंगल स्लाइड। देखिए अब रेफरेंस पहले कहाँ से लिया है ये, एंगस द वर्ल्ड इकोनॉमी नाम का, इसमें इकोनॉमिक टाइम गिनना शुरू हुआ 00 से, अभी 2025 है। तो जब से टाइम गिनना शुरू हुआ तब से लेके 2000 की साल तक का इसमें हिस्ट्री है इकोनॉमी का, पूरे दुनिया के हर एक देश का। उस किताब में से, और वो लिखने वाला व्यक्ति जो है ना वो ब्रिटिश है, जिसने गुलाम बनाया था भारत को। क्योंकि भारत का डेटा बताऊंगा ना, वो तो भारत वाले बाबा जी ये बोलेंगे ही ना भारत के बारे में, वो तो मानेंगे ही नहीं है, तो इसीलिए विदेश वाले ऑथर लेके आए ताकि आपको को विश्वास हो कि नहीं सही बात है बस। दूसरा अमेरिकन है, 11 वॉल्यूम की किताब है, विल डूरांट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। देखो क्या बोल, ये भारत का जीडीपी। तो 00 जब से इकोनॉमिक टाइम की गिनती शुरू हुई, और अंग्रेज 1735 तक अंग्रेज थोड़े बहुत सेट हो गए थे भारत, तो अंग्रेजों की एंट्री तक देखो ये भारत का जीडीपी था। आज पता है सबसे हाईएस्ट जीडीपी किसका है? एनी वन ऑफ यू? हाईएस्ट जीडीपी यूएस, और कितना परसेंट? एनी वन? या परफेक्ट, 24 26 उस रेंज में चलता रहता है। आप सोचिए अभी यूएस इतनी मेहनत करने के बाद, इतना करने के बाद हमारे मिनिमम को जस्ट टच किया है, साइज ऑफ दैट सोने की चिड़िया, जस्ट टच हुआ है अभी तो। और नाउ यूएस जीडीपी इज डिक्लाइन, टच होके वापस जा रहे हैं, और वो भी कितने सालों से है ये? 26 जो भी है, 10 15 20 साल। और इधर देखो आप, लगातार 1700 साल, पूरे पूरे ह्यूमन इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं हो जितना जीडीपी इतने सालों तक पकड़ के रखा है। और ये 00 से आगे का टाइम है नहीं हमारे पास, वरना वो कहाँ जाता वो भगवान जाने है। और आप देखिए अंग्रेज गए तब, एंट्री लेवल पे जीडीपी भारत का, और अंग्रेजों के एग्जिट लेवल पे जीडीपी। और आप देखिए कितने पैसे ले गए भारत से, सब वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको भरोसा ना हो रहा मेरी बात पे आप अपने से वेरीफाई कर सकते हैं। 3735 लाख करोड़ रुपए भारत से बाहर गए हैं आज के कैलकुलेशन के हिसाब से। और आज का भारत का जीडीपी कितना है पता है? अभी का करंट जीडीपी किसी को पता है भारत का? है? हाँ, ट्रिलियन डॉलर, वो तो ये रहा, वो तो ये लिखा हुआ ये रहा परसेंटेज में। या थैंक यू वेरी मच। पर जस्ट वन करेक्शन की, वो जो 6 to 7 है ना वो जीडीपी ग्रोथ रेट है। दो चीजें हो, एक होता है जीडीपी, दूसरा है जीडीपी ग्रोथ रेट। तो 6 to 7 जो है वो भारत का ग्रोथ रेट है, जीडीपी जो है ना वो 4% है, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। वेरीफाई कर लीजिएगा बाद में चीजों को।
तो जीडीपी सेम ही है पिछले 70 सालों से जो था, ठीक है, जो भी है उसमें डोंट। अभी हमारा जीडीपी इतना है 330 लाख करोड़, जो स्टूडेंट ने बताया 4.2 ट्रिलियन, वो कन्वर्ट करोगे तो इतना होगा। अब देखिए जीडीपी से 11 गुना पैसा तो बाहर गया था जब भारत सोने की टोटल जीडीपी, मतलब टोटल भारत का जितना वैल्यू है अभी करंट भारत का, उससे 11 गुना ज्यादा पैसा तो बाहर गया था। नाउ यू इमेजिन द साइज ऑफ दैट सोने की, वो भारत, एंड सी मोस्ट इन्वेडेड कंट्री ऑफ ऑल टाइम। 200 से भी ज्यादा अटैक हुए भारत के ऊपर, ये 200 नॉर्मल नहीं है, पूरे भारत को गुलाम बनाने वाले अटैक की बात हो रही है। 200 बार अटैक हुए, स्टिल वैदिक कल्चर इज नॉट आउट, स्टिल भगवत गीता दुनिया में लोग जानते हैं, स्टिल वैदिक कल्चर को जानते हैं। और सी ये ग्रीस एंड रोमन एंड इजिप्ट, दो दो तीन तीन अटैक सर्वाइव नहीं कर पाए, नामो निशान मिट गया, केवल अवशेष बचे हैं टूटे फूटे। एंड सी वैदिक कल्चर स्टिल एवरीवन नोज गीता, एवरीवन नोज रामायण। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एवरीवन मीन्स मेजोरिटी, तो हर कोई नहीं, एवरीवन। सी द पावर ऑफ दैट कल्चर, कि आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कितने भी अटैक कर लो उस कल्चर को। तो कोई बोलेगा इतना पावरफुल कल्चर था तो फिर इतने सारे अटैक क्यों हुए? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल था वसुधैव कुटुंबकम, सबको माफ कर दो, सबको साथ में लेके चलो, ये प्रिंसिपल्स थे, इसीलिए रिटेलिएट नहीं करते थे, उसकी वजह से इतने सारे अटैक हुए। अब साइज मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं, याद रहेगा ना सबको साइज उस सोने की चिड़िया का। अब चलते हैं क्यों ऐसा था भारत, आखिर इतना सारा ये सब आखिर आया कहां से था, क्यों आता था? क्योंकि ऑब्वियस है लोग बुद्धिमान होंगे तभी इतना जनरेट कर पाते थे, तो क्यों इतने बुद्धिमान थे लोग, क्यों इतने सोफिस्टिकेटेड थे? उसका रीजन ये है कि इतने गांव थे, उसके सामने इतने गुरुकुल थे। गांव से ज्यादा क्या थे? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गुरुकुल में जाके पढ़ो या गुरुकुल बनाओ, मैं कुछ अलग बात बताना चाहता हूँ कि उस गुरुकुल में क्या करते थे। पीपीटी थोड़ा मिसअलाइन हो गया है उसकी वजह से, पर मैं पढ़ देता हूँ। भगवत गीता टू एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, जब वो स्टूडेंट एंटर करता था स्कूल में, गुरुकुल में 5 साल के, तो पता है सबसे पहले क्या सिखाते थे उसको? भगवत गीता। कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कौमार मतलब 5 साल। भाई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई लिखाई रोटी कपड़ा मकान के बारे में बाद में बात होगा, सबसे पहले तुमको गीता सीखना। ये था गुरुकुल सिस्टम। सबसे पहले उसको गीता क्लियर कराते थे, गीता के सिद्धांत क्लियर कराते थे, उसके बाद उसका एजुकेशन स्टार्ट होता था। और उसमें जब वो 25 साल पे बाहर आता था तो उसको क्या आता होता था, यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी तक वो जानता होता था वो। भगवत गीता से स्टार्ट करके ज्योतिष शास्त्र तक सब कुछ कवर कर लेते थे। ज्योतिष शास्त्र आपने सुना होगा ना, आप जन्म तारीख अपना दीजिए और आपका जन्म का जगह बताइए, दो चीज दे के वो जो ज्योतिष है ना, आपका 100 साल का पूरा वही पर, आप उससे कुछ नहीं छुपा सकते, वो सब कुछ जान जाएगा आपके जीवन के बारे में। कभी चक्कर में मत पड़ना। बोले प्रभु जी पूरे सेशन में ये टर्निंग पॉइंट आया, अभी 5:15 बजे छूट के गूगल करके चैट जीपीटी को बोलेंगे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करो मेरे को। नहीं मतलब जा सकते हैं पर संभाल के, क्योंकि 99% समझ रहे हैं ना आप, बुद्धिमान है। पर हम इतना समझते हैं कि ये साइंस ओरिजिनल है, इसको जानने वाले लोग नहीं है, फ्रॉड है, पर इतना तो मानते हैं ना पूरी दुनिया की, हाँ ये साइंस ओरिजिनल है भैया ज्योतिष वाला। सोचिए आप कितने एडवांस लोग थे, कितना एडवांस था वैदिक भारत, कि आपका एक चीज बता दो वो आपका 100 साल के बारे में सब कुछ जान गया वो, कि कब आपका, आपके लाइफ में कब बिजनेस होगा, कब जॉब होगा, कब मेजर इवेंट्स होंगे, कब हेल्थ इश्यूज होंगे, कब शादी होगा, क्या होगा, सोचिए। मतलब यू कांट इवन इमेजिन, उस लेवल का नॉलेज हुआ करता था वैदिक भारत में। और जन्म तारीख बतानी है, नो प्रॉब्लम, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपकी ये लकीरें पढ़ के वो बता देगा 100 साल, या आपकी हाथ की रेखाएं देख के। कैन यू इमेजिन द साइंस, कैन यू इमेजिन द सोफिस्टिकेशन? फिर भी दुख की बात है कि हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो पछात लोग थे, भारत तो बहुत पछात था।
ये तो सब वेस्ट बाहर की दुनिया से टेक्नोलॉजी है, तब हम एडवांस हुए। वी डोंट नो अवर हिस्ट्री, वी डोंट नो अवर ग्लोरियस हिस्ट्री, कि हम क्या थे और किस लेवल का साइंस था कि जो यूज करते थे हमारे लोग है। आप देखिए तमिलनाडु का मंदिर है, 1200 साल पुराना है, वो कार्बन डेटिंग से पता किया। उस मंदिर की दीवार के अंदर भी नहीं, दीवार के बाहर, मंदिर के बाहर की से पहले दिन से लेके 9वें महीने तक गर्भ में बच्चा कैसे डेवलप होता है, कौन से महीने कौन सा अंग बनता है, क्या होता है, पूरा पत्थरों पे तराशा हुआ है। कितने? 1200 साल पहले। और मेडिकल साइंस के हिसाब से जो होता है वो मिलाया, दोनों एग्जैक्ट सेम, जीरो जीरो डिफरेंस। मेडिकल साइंस को कितने समय पहले पता चला? 50-100 साल, हमें जो भी। तो मेरा ये सवाल है कि हम किस बेसिस पे ऐसा बोलते हैं कि हम बैकवर्ड थे? इतना सब है वहां पे। अगर आपको और ज्यादा जानने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसका नाम है द साइंस इन एंशियंट इंडिया। फिर से नाम रिपीट करता हूँ डॉक्यूमेंट्री का, द साइंस इन एंशियंट इंडिया। ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, इट इज जॉ ड्रॉपिंग। और इसमें कुछ भी भावुकता वाली बात नहीं है। वो जहां से बता रहे हैं आपको प्रूफ बताएंगे, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। मतलब आप मना नहीं कर सकते। अभी जैसे आप देखो नासा है फॉर एग्जाम्पल, अगेन डोंट टेक इट पर्सनल। नासा नासा ने जो हमें डिस्टेंस खोज के दिए है सूर्य से चंद्र इतने दूर, वॉट एवर, एंड इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर नासा, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, वी एक्नॉलेज इट। पर नासा ने जो डिस्टेंस खोज के दिए हैं, अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ोगे हमारा जो 5000 साल पहले लिखा गया है, पत्तों के ऊपर वो डिस्टेंस लिखे हुए हैं। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर, पत्ते के ऊपर लिखा है। और नासा के डिस्टेंस लेके आइए, हमारा पत्ता बाजू में रखिए, दोनों में 0.001 का डिफरेंस नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 0.001 का डिफरेंस पत्तों पे लिखा है, जिसको खोजने में नासा को करोड़ों डॉलर लगे, कितने साल लगे। वो चीज हमारे लोगों ने पत्तों पे लिख के रखा है, पर हम वो नहीं लेंगे। नासा वाले बोलेंगे तभी मानेंगे। हमारे संत जो बोल के गए इससे इतना दूर है, नहीं, वो तो पछात लोग थे यार, उनका क्या मानना। कितनी आश्चर्य की बात है। हमें से देखो तिलक करके, अभी तो धोती नहीं पहना है, कभी कभी धोती पहनते हैं, तो कॉलेज में जाते तो लोग ऐसे देखते हैं। मतलब यार मंगल ग्रह से आए हैं क्या इधर? अरे भाई तुम्हारा कल्चर है ये तुम्हारा कल्चर है ये। अंग्रेजों के आने तक ये कल्चर था भाई। तो नहीं, क्या ही मतलब। तो इतना सोफिस्टिकेशन हमको देखने को मिलता है वैदिक भारत में। जो जो चीजें वहां लिखे, आप देखो न्यूटन के 3 नियम, आपको पता है लिखे हुए हैं वेद में, तीनों के तीनों नियम है। अगर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इट इज देयर। पाई इज इक्वल टू 3.14, इट इज देयर। जी इज इक्वल टू 9.8, इट इज देयर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते थे ना, संकलन विकलन, इट इज देयर इन वेदास, इट इज देयर इन वैदिक मैथ। फॉर वैदिक मैथ्स यू डोंट इवन नीड कैलकुलेटर, नो मैटर हाउ बिगर, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, यू डोंट नीड कैलकुलेटर। दिस इज वैदिक भारत। पर क्योंकि हमें कभी बताया नहीं जाता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पछात लोग थे, हमारा संस्कृति बहुत पछात था। तो हमें फीलिंग आता है क्योंकि हमें बताया नहीं गया है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो भगवत गीता से जो गुरुकुल स्टार्ट करते थे, तो क्योंकि वो बच्चा का पिलर पहले बनाए जाते थे। हम जो डिग्री स्किल लेते हैं ना, वो बिल्डिंग है हमारे जीवन का, जीवन रूपी बिल्डिंग है वो। उसके पिलर जो है ना, वो ये हमारे डिग्री, ये कला नहीं है, उसके पिलर है भगवत गीता। तो आप बिना पिलर के अगर अपने जीवन का बिल्डिंग बनाएंगे तो सक्सेस मिलेगा, याद रखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, लाइफ नहीं मिलेगा। लाइफ मीन्स सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एंड पीस, उसको लाइफ कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो आपको पिलर, इसीलिए देखो यहाँ पे पिलर बनाते थे। तो इसीलिए वो जो लोग होते थे वो इतना बड़ा अचीव कर पाते थे बड़े होके।
आ जाइए, मतलब नहीं आने देना था, मैं भंस रहे इसलिए। ठीक है ना, आने दिया, ठीक किया ना, एग्री है ना आप सब? हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये देखिए इसरो के चीफ क्या बोल रहे हैं। गुजराती वाले गुजराती पढ़ लीजिए, बाकी इंग्लिश भी। વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો વેદોથી મળ્યા, પશ્ચિમે તેને પોતાની શોધ ગણાવી। जो मैं कब का बोल रहा हूँ आपको कि यू नेम, आप कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम दीजिए, वो सिद्धांत वेदों में है। और वेदों में वो सिद्धांत है जिसका अभी, जहां तक अभी विज्ञान पहुंच नहीं पाया, जहां तक अभी दे आर येट टू रीच। जैसे मैंने ज्योतिष शास्त्र बताया, साइंस को भी बहुत दूर है, साइंस वहां से उस वहां पहुंचने से। तो ये देखो, जो सही में जो इंटेलिजेंट लोग है, बुद्धिमान, वो लोग अभी पहचान, जैसे इसरो के चीफ वो पहचान रहे कि सही बात है, बात सही है, ये सब हमारे वेदों में है। फिर भी हम सोचते नहीं, हम बैकवर्ड। तो इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बैकवर्ड थे। वी वेर दी मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, जहां तक आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन पहुंच भी नहीं पाया है, इतना मॉडर्न था वो। आप देखो, महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, लाइव टेलीकास्ट कहाँ हो रहा था? इंद्रप्रस्थ में। क्या वो नहीं हुआ? 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी नहीं हुआ क्या वो? वहां पे वहां पे काम चल रहा है, टेलीकास्ट यहाँ पे हो रहा है। और अभी हमें वो करने के लिए कितने डिवाइसेस लगाने पड़ते, कितने सैटेलाइट का हेल्प लगाना पड़ता है। संजय ने कुछ नहीं किया, आंख बंद करके बोलने लगा, अर्जुन ऐसे खड़ा है, कृष्ण ऐसे खड़े, ऐसे बोल रहे, इसने इसको मारा, इसने, सिंपल। ठीक, द पावर। ब्रह्मास्त्र जो है वो कोई वेपन नहीं है, वो मंत्र है। इसके ऊपर अगर मंत्र बोलेंगे, इस माइक के सामने रखिए, ये माइक ब्रह्मास्त्र में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई चोरी नहीं कर सकता। जितने भी वेपन है महाभारत में, जितने वेपन यूज हुए ना, वो आप चोरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मंत्र से एक्टिवेट होते हैं। अभी तो कितने भी वेपन बना लो, उसकी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। वो ब्रह्मास्त्र बोले मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, ले जा, कहां से ले जाएगा तू? समझ? आप सोचिए टेक्नोलॉजी, द एडवांसमेंट ऑफ, कि आपके हथियार चोरी नहीं किए जा सकते। और जिसने वो हथियार दिया है वो डिसाइड करेगा तुम चला सकते हो कि नहीं। कर्ण को सारा विद्या दिया, फिर जब बाद में पता चला कि इसने मेरे साथ छल किया, तो गुरु ने बोल दिया कि बेटा जब तुझे जरूरत होगी ना, तेरे कोई शस्त्र नहीं चलेंगे। और जब कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत थी, सारे मंत्र भूल गया वो। आपको दे दिया, पर देने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है कि तू कब यूज करेगा, कब नहीं करेगा। ऐसे वेपन्स है क्या हमारे पास? इसके ऊपर तो बहुत लंबा चर्चा हो सकता है कि कितना एडवांस था वो, कितना एडवांस था। और ब्रह्मास्त्र है, पूरे ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता है वो, और एक छोटे बच्चे को भी मार सकता है। यही किया था अश्वत्थामा ने, ब्रह्मास्त्र थोड़ा छोटे बच्चे को मारने के लिए। मतलब वेपन का पावर आप सोचो, अप डाउन कर सकते हो। सोचो ब्रह्मांड को मारने वाला हथियार एक गर्भ के अंदर जाके छोटे बच्चे को मारा, कितना जबरदस्त वेपन है। मतलब ऐसी बात हुई कि एटम बम से चींटी को मारना है, पॉसिबल है? वैदिक भारत में वो पॉसिबल था। महाभारत के जो वेपन थे वो ऐसे चलते थे। और पता है वो ब्रह्मास्त्र या कोई भी वेपन वो मारने के बाद वापस आता है उसके पास। पता, मिसाइल थोड़ा बम होके वापस आया मिसाइल, तो वापस तो दूर की बात है, 4 आतंकवादी को मारना था, आतंकवादी तो भाग गया, 15 सिविलियन मर गए। वापस तो बाद में आएगा वो। अगेन, डोंट टेक इट पर्सनल, वो जो भी मिसाइल बनाया, रिसर्च किया, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक अचीवमेंट है। मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा उस एडवांसमेंट को, वी आर जस्ट कंपेयरिंग। तो डोंट गेट इट पर्सनल। मटेरियल नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन। और ये आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना, अलग पांडे? तो उसका ही पोस्ट है। यस यस, अच्छी बात है, पर पढ़िए वो कुछ बोल रहे हैं। लिटिल डिड वी टॉक, ये कब बोला था उसने? जब ऑल इंडिया, पूरे भारत में नंबर 1 रैंक आया था 2017 नीट का, उसने सुसाइड कर लिया, तब उसने ये पोस्ट किया था। लिटिल डिड वी टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल फेलियर्स। वो बोल रहे हैं कि हर कोई सिखा रहा है सक्सेसफुल कैसे बनना है,
पर भाई मैं जब फेलियर हो जाऊं तब मुझे क्या करना है वो कोई नहीं बता रहा है। फिर वो बोल रहे हाउ टू नर्चर अ ब्रोकन हार्ट, हृदय टूट गया, बहुत बहुत गहरा जख्म लगा है हृदय में, तब मुझे क्या करना है, हाउ टू ज्वाइंट दैट ब्रोकन हार्ट। तो ये देखो, बता ना कितने बड़े बड़े लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई गीता सिखाना पड़ेगा, ये सीरियस इश्यू है ये सब। फिर लास्ट बोल रहे हैं वो, a lot should be spoken and heard around mental health before this becomes a new normal। बोले मेंटल हेल्थ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, हर कोई मशीन पे, टेक्नोलॉजी पे, पैसे गाड़ी बंगले पे बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं कर रहा। दिस स्टूडेंट्स आर फेसिंग। पर स्पिरिचुअल नॉलेज हमें ट्रांसफॉर्म करता है हमारे हृदय को। आपने कभी सुना कि इंजीनियर का डिग्री मिलते ही हृदय परिवर्तन, बोले अब परोपकार करेंगे संसार, अब कुछ झगड़ा नहीं केवल दया ही दया। वो भजन में आया था ना, वो तुम्हारे जीवन में हो मधुबन है बगीचा, ऐसा कुछ आया था ना अभी। बोले हाँ वो होगा, क्यों, क्योंकि मैं इंजीनियर बन गया, अब खत्म। आज तक सुना कभी? मतलब मैंने नहीं सुना है, और मैंने बहुत कम सुना है, तो हो सकता है आपने सुना, तो हाँ सर हमने सुना वो इंजीनियर का ऐसा हुआ, या डॉक्टर बनते ही हाँ अब बस किसी दिन का इंतजार था, हमारा हृदय पूरा परिवर्तित हो चुका है, ऐसा सुना। पर आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि गीता पढ़ के हृदय परिवर्तन हो गया हो, रामायण पढ़ के, महाभारत पढ़ के हृदय परिवर्तन हुआ हो। ये एक नहीं हजारों एग्जाम्पल। रामायण लिखने वाले खुद उदाहरण है। रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने, थे कौन? रत्नाकर डाकू। खुद रामायण का राइटर इटसेल्फ उदाहरण है वो, कि हृदय परिवर्तन होता है। तो अंतर बता रहा हूं भगवत गीता एंड दूसरी किताबों में। ध्यान आप देखिए, कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण, प्रैक्टिकल उदाहरण। अभी रामायण आप बेसिक जानते होंगे, 14 साल का वनवास था, तो 13 साल तो तीनों साथ में चले थे। ध्यान से सुनिएगा ये उदाहरण, दुनिया में इतनी सारी समस्या है ना, उसका सॉल्यूशन, मतलब मैं ये उदाहरण से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कैसे रामायण और गीता पढ़ने से दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते, उस पर चर्चा हो रही। थीम समझ गए ना, कि रामायण गीता अगर पढ़ेंगे तो ये दुनिया में जितने प्रॉब्लम है ना, भ्रष्टाचार, रेप, सुसाइड, ये सब सॉल्व किए जा सकते हैं। कैसे वो बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कि 14 साल के वनवास में 13 साल साथ में चले थे तीनों, जहां जहां गए थे। अब रामायण में लिखा है लक्ष्मण जी जो है ना 1 या 2 मीटर की दूरी पे चलते थे, मतलब सीता जी से या तो 3-4 फुट आगे या तो सीता जी से 3-4 फुट पीछे। 13 साल, 13 साल ऐसे चले हैं, ऐसे रहे हैं इतने क्लोजली सीता देवी के लक्ष्मण जी। जब सीता देवी किडनैप हो गई तो वन में ज्यादा गहने तो थे नहीं वैसे भी, एनीवे एक एक दो दो था सबका, सारे अंगों का। तो गिराते गए, वानर सेना वापस लेके सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को दिखाए, बोले देखिए ये मिला है हमको, प्रेस किया तो सारे गहने। तो सीता जी का ऊपर का, ये गले का, ये ब्रेसलेट, जो जो, बोले लक्ष्मण जी बोला आई डोंट नो, पता नहीं किसका है ये। फिर एंकल बेल, ये झांझर क्या बोलेंगे, एंकल बेल जब मिला झांझर, बोले ये सीता देवी का है, बोले ये सीता देवी का है। सुग्रीव जी बोले यार क्या सीता देवी के, बाकी सब भी उसी का है। लक्ष्मण जी बोले हो सकता है, पर मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, ये झांझर सीता देवी का ही है। तो वानर सेना का सिस्टम हैंग हो गया, बोले ये किस दुनिया का आदमी, मतलब ऐसा क्या बोल रहा है ये। तो पूछ लिया लक्ष्मण जी को, पूछ लिया वानर सेना ने, सुग्रीव जी ने, कि ये किस स्त्री का है ये सब। तो आपको झांझर पता है, ये कमर का, ये क्यों नहीं पता? बोले सीता देवी जो है ना वो बड़े भाई की पत्नी है, इसलिए आज तक पैरों से झांझर से ऊपर कभी नहीं देखा। तो मुझे लगता है आप सब धार्मिक लोग हैं। हाँ सही बता रहा हूँ। नहीं, बोले हम और धार्मिक लोग हैं। तो प्रभु जी मजा आया इसलिए ताली बजाया, ठीक है। वट एवर इट इज, जब ये सुनते हैं ना, जब ये कथा सुनाया जाता है तो ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, देखो बोला था ना हमने रामायण गलत है, बोला था ना रामायण कल्पना है, क्यों? अरे ऐसा संभव है भैया कि 13 साल तुम 1 मीटर की दूरी पे चल रहे हो, तुम बोल रहे पैरों से ऊपर देखा नहीं?
इसीलिए हम नहीं पढ़ते रामायण, ये सब बकवास की कथाएं है। मतलब कि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा कैरेक्टर इतना गिर चुका है कि जब हम ऐसी बात सुनते हैं ना, हम हजम तक नहीं कर पाते, फॉलो करना तो दूर की बात है। हमारे गले से नीचे नहीं जाता कि लक्ष्मण जैसा व्यक्ति एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा किया जा सकता है। हम सुनने की ताकत गवा दिए हैं, फॉलो क्या करेंगे। और इसीलिए रामायण महाभारत को लोग दंत कथा बोलते हैं, क्योंकि उसमें इस लेवल के उदाहरण है जो सुनने की ताकत भी नहीं देती। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये लक्ष्मण जी का कैरेक्टर अगर नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी से बच्चों के दिमाग में फिट कर दिया जाए, क्या आप सोच सकते हैं सोसाइटी में कभी रेप होगा? कभी किसी स्त्री को या किसी की बेटी को, किसी की माँ को मिस हैंडल किया? कैन यू इमेजिन? नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो बच्चा लक्ष्मण जी को सुनते सुनते बड़ा हुआ है, वो सोच नहीं सकता इस बात को। प्रॉब्लम सबको पता है, रेप हो रहे, हर रोज न्यूज में आता है, सॉल्यूशन पे कौन बात कर रहा है? प्रॉब्लम पे चर्चाएं हो रही है। या निर्भया हेल्पलाइन बना देंगे, फांसी पे लटका देंगे, हाँ सजा मिलना सब बात, पर आपको नहीं लगता कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन? दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, मोस्ट इफेक्टिव वन। सेम चाणक्य पंडित, वो अभी करप्शन देखो हर जगह। परसों का न्यूज़पेपर पढ़ा, गुजरात समाचार, किसी ने पढ़ा हो तो? परसों का बता रहा हूँ, एक दिन पुराना। मध्य प्रदेश की एक स्कूल में, डोंट टेक इट पर्सनल मध्य प्रदेश लवर, जो भी है, मतलब आप में से, मध्य प्रदेश की एक स्कूल में 4 लीटर कलर लगाया। कितना? देखो सर ने पढ़ा है, 4 लीटर कलर लगाया, बिल कितना आया सुना भाई किसी ने? ये पता है आपको? 1 लाख रुपए 4 लीटर कलर लगाने के भैया। कौन सा कलर? गोल्ड प्लेटेड, पता नहीं सोना पिघला के लगाया हुआ था। और 1 लाख रुपए नहीं, कितने लोग लगे पता है? 258 पेंटर्स लगे भैया, एक एक बूंद ले लेके चिपकाया होगा ऐसे भाई। एंड स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होता। स्कूल के प्रिंसिपल ने पास कर दिया, मध्य प्रदेश के एजुकेशन बोर्ड ने भी बिल पास कर दिया। उनका स्कूल में जाना पड़ेगा एरो कलर देखने। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट, क्या हो रहा है? अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस स्कूल के बच्चे प्रामाणिक निकलेंगे वहां से पढ़ के? भ्रष्टाचार सबको खत्म करना है, पर स्कूल के अंदर ही बच्चे भ्रष्टाचार आंखों से देख रहे हैं, प्रिंसिपल को, एजुकेशन बोर्ड को भ्रष्टाचार करते हुए। वो बच्चा बाहर निकल के करप्शन नहीं करेगा तो क्या समाज सेवा करेगा वो? सी द वेयर इज द प्रॉब्लम, वी आर डिस्कसिंग हियर, वेयर द प्रॉब्लम लाई। पिलर्स ही सड़े हुए हैं, बिल्डिंग कैसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भगवत गीता का पिलर नहीं होगा ना, समाज में कभी शांति नहीं होगी। समाज में फैसिलिटी आएगी, सुविधा आएगी, समाज में पैसा आएगा, सब आएगा, सुख शांति समाज में नहीं। अगेन सी अराउंड द वर्ल्ड, हाउ मच शांति इज देयर अराउंड द वर्ल्ड। क्यों? रीजन, पिलर सड़े हुए हैं। चाणक्य पंडित बैठे थे, दिया जला के काम कर रहे थे, उसका फ्रेंड या रिलेटिव आया, सुना होगा शायद, 1000 साल पुराना स्टोरी है। तो दिया जला दिया, दूसरा दिया जला, दोनों का लाइट सेम था, सेम दिया था, जस्ट अ डिफरेंट पीस। तो उसके फ्रेंड या रिलेटिव पूछे, सी नो वन वॉज देयर टू रिकॉर्ड चाणक्य पंडित, इट वॉज जस्ट बोथ ऑफ देम। वो और उसका रिलेटिव, कोई नहीं था कि जो रिकॉर्ड कर रहा था कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा संभाल के। ऐसा नहीं था, कोई नहीं था वहां पे देखने वाला। इट वॉज हिज नेचुरल बिहेवियर, चाणक्य पंडित, नेचुरल बिहेवियर। क्या? उसने पूछा, भैया ये दिया सेम ही उजाला कर रहा है, वही रहने दिया होता, इधर ले लिया होता? बोले नहीं, वो गवर्नमेंट का काम कर रहा था और वो दिया गवर्नमेंट का सप्लाई किया हुआ है। ये तुम और मैं बैठे, ये पर्सनल काम है, ये पर्सनल दिया है। गवर्नमेंट का दिया पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकता। कितने रुपए का तेल जाता अगर वो 1 घंटा भी बैठते तो? 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। स्टिल ही इज होनेस्ट, प्रामाणिकता। कोई नहीं था देखने वाला, फिर भी उसकी प्रामाणिकता। अगर ये स्कूल में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। कि ईडी की रेड डलवाने से, जेल में ये सीबीआई को, ये सब से नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार, कितना भी कर लो। देखो वही कर ही रहे,
वो लगता है भ्रष्टाचार कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो लेना नहीं है, हमें रिसर्च करना है सॉल्यूशन। भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे, लेट्स मेक अ टीम एंड डू रिसर्च। वो रिसर्च कभी काम नहीं करेंगे। सॉल्यूशन दिए हुए भाई गीता रामायण में, सिंपल। और रिसर्च में जो पैसा जा रहा है ना, वो गरीबों को बांट, दोनों काम हो जाएंगे। गरीब भी भर पेट खाना खा के सोएंगे और तुम्हारे प्रॉब्लम भी। पर नहीं, पैसा गरीब या जरूरतमंदों के रिसर्च में डाले जा रहे और वो रिसर्च काम नहीं कर रहे। मैं आपको अलग अलग एंगल से बता रहा हूं क्यों गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा अगर सुख शांति चाहते हैं तो अपने जीवन में और समाज में। एंड लास्ट थीम हमारे प्रेजेंटेशन का ये मॉडर्न सिनारियो वर्सेस भगवत गीता। फोटो भी काफी अच्छा है ना, बढ़िया सा। भगवत गीता निकाल रहा है अंदर से गंदगी बाहर, और वो गंदगी क्या है आप देख रहे हैं ना। वो बड़ी ठीक से दिख नहीं रहा क्योंकि हम करते हैं ना वो सब, इसलिए। ठीक है, ये तो दिखेगा मेरे ख्याल से, ये अच्छा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये भारत का आर्टिकल है। 7 आउट ऑफ 10 यूथ लैक सेल्फ एस्टीम। और यहाँ पे देखो कितने परसेंट स्टूडेंट भारत में अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस 39%। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की कमी है 70% को। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम 33। प्रोकास्टिनेशन कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करने वाले ना आप सब। हाँ, तो नहीं नहीं तो अच्छी बात। मतलब 33 लोगों का प्रॉब्लम है वो 100 में से भारत में, कि कल से ही कर रहे हैं वो, और कल से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, पर वो कल से में से। एंड देन स्लीप प्रॉब्लम है 24 का, पैनिक अटैक 22, परफॉर्मेंस एंजाइटी 24, रिलेशनशिप 35। अब ये बताइए ये सब प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करेंगे? फिजिक्स पढ़ के कि केमिस्ट्री पढ़ के? नहीं मतलब वो पढ़ना, देखो अगेन गलत मत ले लेना भाई, मैं खुद भी अच्छे से पढ़ाई किया हूँ, अच्छा खासा सब आप भी करना है, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ये गीता ही सॉल्व कर सकता है। हम जो पढ़ रहे सीख रहे हैं वो रोटी कपड़ा मकान देगा, ये सॉल्व करके नहीं देगा आपको। और ये सॉल्व करना है तो गीता। हाँ ये वाला अच्छा, ये शायद कई लोगों को धुंधला दिखेगा क्योंकि हम कर रहे हैं ना वो सब। बोले सर जी वो दिखाई नहीं दे रहा, 100 करोड़ युवान बहरे हो जाएंगे। क्यों बहरे हो जाएंगे? तो लिखा है कान में ईयरफोन ईयरबड हेडफोन लगा के। अरे ये तो मैं करता हूँ। अब दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा, अच्छा ऐसा है। हाँ, समझ रहे हैं कि आई ओपनिंग है। हम जो चीज कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे वो हमको बर्बाद कर रहा है। पर हम क्या सोच रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो आपको पता है 10 वाले की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाइए, फिर वहां से कूदिए, जो हवा में मजा आएगा। पर उसके बाद समझ रहे, उसके बाद गए काम से आप। तो हम जो एंटरटेनमेंट नाम के मजा ले रहे हैं ना, वो हवा वाला मजा है। 10वें माले से नीचे तक बीच वो हवा वाला, जैसे ही नीचे पहुंचे बहरे। इसीलिए न्यूज़पेपर से, क्योंकि सीधा बोलूंगा ना, "अरे आप ऐसे कैसे बोल दिया", ऐसे करते हैं लोग। इसीलिए मैंने, अब देखो आपने देखा पूरे प्रेजेंट में बोला कभी मेरे विचार से, सारे रेफरेंस दे दे के बता रहा हूँ भाई, ये तो न्यूज़पेपर कटिंग है पूरा, इसमें तो डाउट ही नहीं हो सकता। और डब्ल्यूएचओ वाले बोल रहे थे, डब्ल्यूएचओ बोलेंगे तो मानेंगे, कृष्ण बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, वो तो भगवान थे, उसकी बात क्या माना। डब्ल्यूएचओ वाले कुछ पता नहीं वो बोलते, उसका मानना चाहिए। भगवान मोस्ट ऑथेंटिकेट व्यक्ति वो बोल रहा है, उस पर डाउट करते हैं। और ये रिसर्च कर करके बताते हैं, जो रिसर्च 5 साल के बाद बदल जाता है, उस पर हमें भरोसा है। कितना आश्चर्य का बात है, भगवान को डाउट करके। दुनिया में 5 में से 4 हाइपरटेंशन, ये देखो ઊંઘવા અને જાગવામાં ભારે અનિયમિતતાથી પેટમાં રહેલા બેક્ટેરિયા જંક ફૂડ ખાવાની ઈચ્છા વધારે છે। कोई बोले अरे कभी भी सो, कई लोग भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। पता है कैसे? बोले भगवान जब सुलाते हम सो जाते हैं। फिर बोले सर आप क्या गीता सिखाओगे? हम तो गीता बोलने वाले कृष्ण जीते ऐसे ही जीते, हम कृष्ण सुलाए तो सो जाते हैं। फिर अलार्म क्या रखना, कृष्ण जब उठाते हैं तो उठ जाते हैं। अब कभी वो 6 बजे उठा देते हैं, कभी वो 8 बजे उठाते हैं, कभी 12 बजे भी उठाते हैं।
तो आप तो गीता बोल रहे हो, हम तो कृष्ण को जी रहे हैं भाई। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? तो ऐसा होने से क्या होगा पता है, आपको दाबेली पिज्जा पास्ता खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जंक फूड खाने का इच्छा बढ़ता है, अगर सोना उठना रेगुलर नहीं है ना तो। अब सोना उठना रेगुलर नहीं है, उससे प्रॉब्लम होंगे बॉडी में, और बाद में ये इच्छा होगा जंक फूड खाने का। वो जंक फूड खाने से दूसरा, देखो नाम ही है जंक। आपके मोबाइल में पता है जंक आता है, जंक फाइल, उसको रखते हैं ऐसे दिल से लगा कि वो जंक फाइल है, प्रभु जी ये कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसे करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, डिलीट करते हैं ना। जंक फाइल डिलीट करते हैं पर जंक फूड खाएंगे। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग पावर, इंटेलिजेंस जीरो। हर रोज जंक क्लीन कर रहा है, पर खा, बल्कि जंक फूड खाते खाते जंक फाइल क्लीन कर रहा है। हाइट। देन ये वाला डेंजरस, सोशल मीडिया रील्स है दिमाग के लिए खतरा। बोले प्रभु ये तो हमारा ही लग रहा है मतलब। आपको पता है इंस्टाग्राम के बारे में क्या लिखा है? बोले प्रभु जी प्लीज मत बताना, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ते हैं आपसे, पांव पड़ते मत बताना, क्योंकि बंद करना पड़ेगा, बताना मत प्लीज। नहीं बताएंगे, माइक दिया है ना, छोड़ेंगे थोड़ी अभी, जरूर बताएंगे। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का वर्ल्ड फेमस न्यूज हाउस है, वॉल स्ट्रीट मोस्ट मोस्ट ऑथेंटिक। उसमें 6 सीरीज का आर्टिकल आया था, उसका नाम था आर्टिकल का, अभी भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, द फेसबुक फाइल्स उसका नाम है, उस आर्टिकल का टाइटल, 6 वॉल्यूम है उसकी। और किसने लिखा है? फेसबुक की वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव, मतलब फेसबुक के मालिक के जस्ट नीचे वाला व्यक्ति, फेसबुक से निकलते ही लिखा वो। उसमें उसने क्लियरली लिखा, इंस्टाग्राम इज डिजाइन टू डेवलप स्ट्रेस। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंस्टाग्राम इज डिजाइन टू डेवलप स्ट्रेस। इंस्टाग्राम को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। उससे क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप और यूज करोगे रिलीज होने के लिए उससे। जितना ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करोगे, ज्यादा एड चलेगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। सी द ट्रैप। प्रूफ दे रहा हूँ, अभी भी पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, वो 6 जो वॉल्यूम का है ना, आई ओपनिंग है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कितने डेंजरस है इसके लिए। यू रीड योर सेल्फ। मेरा मेरा मत, मैं तो बोल रहा हूँ मत विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं एड्रेस दे दिया कहाँ मिलेगा, पढ़ लीजिए। फिर घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। पर मुझे पता है, ये मैं बता दिया रेफरेंस के साथ, उसके बाद भी आप में से ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम बंद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुलाम बन चुके हैं। बुरा मत मानना, दिस इज द रियलिटी। जानने के बाद भी हम नहीं बंद कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस ट्रैप में फंस चुके हैं। हाँ, अगर पढ़ाई के लिए या अपना कोई कोई स्किल सीखने के लिए आप करते हैं, तो जैसे व्हाट्सएप में भी यूज करता हूँ, जैसे आपका कॉलेज का भी ग्रुप होगा जिसमें असाइनमेंट्स वगैरह आएंगे। यहाँ पे ये कौन सा रिसर्च है? एंटरटेनमेंट वाला। कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पे जो यूज करते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ा रहा है, एंड यू डोंट नो। उससे बड़ी बात वो है, हमें लगता है वो एंटरटेनमेंट। और ये जितना टाइम इसको देते हैं, इसका केवल 20% टाइम आप गीता पढ़िए, देखिए, सी द डिफरेंस एंड फील द डिफरेंस। 20% टाइम मांग रहा हूं आपसे। आप जितना एंटरटेनमेंट पूरे दिन में टाइम देते हैं सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूट्यूब पे, उसका 20% निकालिए, जो भी 10 15 मिनट 20 मिनट आएगा, उतना गीता पढ़िए एंड सी द डिफरेंस आफ्टर 1 मंथ। ट्राई करके देखेंगे ना, तब समझ आएगा, वरना मेरा लेक्चर आपको लेक्चर ही लगेगा। ये लेक्चर नहीं है, इट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टॉक। ये करेंगे ना, आपका जीवन बदल सकता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। 70% लोग सोते समय मोबाइल देखते हैं। देखिए क्या मोबाइल का ज्यादा आत्महत्या, डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण है, रिसर्च। अगर आप और ज्यादा कीजिए तो आप सर्च कीजिए, डोपामिन लूप सर्च करना, क्या होता है वो डोपामिन लूप। देन स्मार्ट स्क्रीन का ब्लू लाइट, ये सब सर्च करना। उसी इंटरनेट, देखो हम, मैं भी वही इंटरनेट यूज करता हूँ जो आप करते हैं, फिर भी मेरे को ये सब पता है, और ज्यादा लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि
वो कभी इस दिशा में सोचते ही नहीं है। दे आर जस्ट बिजी इन रील्स एंड शॉर्ट्स एंड कॉमेडी एंड सिनेमा एंड पोर्नोग्राफी, उसी में बिजी है। मैं भी तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा इंटरनेट हिमालय से आता है भाई, हमारा वाला अलग है, ये हिमालय वाला इंटरनेट है, इसमें खोलोगे तो यही सब दिखाएगा, बाकी कुछ दिखाएगा ही नहीं, क्यों? हिमालय से आता है। ऐसा तो है नहीं कि सेम इंटरनेट। कि यहाँ पे सोशल मीडिया वर्सेस भगवत गीता कंट्रोल्स योर माइंड। सोशल मीडिया कंट्रोल करता है माइंड को, और भगवत गीता टीचेस यू टू कंट्रोल योर माइंड। तुम लोग वहां देख रहे हैं, अजीब है, चल के ही गए ना। तो दंडवत करते करते जा रहे प्रभु जी, गीता चढ़ गया लगता है। उधर क्या देखना, दो लोग जा ही तो रहे हैं इधर, भैया ये बाद में नहीं आएगा, ये बाद में नहीं आएगा। भगवत गीता टीचेस यू टू कंट्रोल योर माइंड। सी द डिफरेंस, 20% टाइम क्या डिफरेंस लाएगा लाइफ में। देन गिव्स फेक आइडेंटिटी, और भगवत गीता रिवील्स योर रियल सेल्फ। सोशल मीडिया फेक है। आप देखा सेल्फी सब कैसे खींचते हैं, ये चीज ऐसे कहते हैं फोटो खींचने से पहले। अरे चीज क्या कहे यार, बैंड बजी हुई है चीज, तू चीज कह रहा है इधर से। नहीं फिर भी कैमरा ऑन हुआ तो सीधा बंदर, पता है कैसे दांत दिखाते, देखा कभी यूट्यूब पे देख लेना, आपको लगेगा ये तो मैं ऐसे ही करता हूँ यार, ऐसे ही दांत दिखाता हूँ कैमरा ऑन होते ही यार। आपको लग सेल्फी का मतलब है रिप्रेजेंटिंग योर ट्रू सेल्फ। सेल्फी खींचते कितने लोग अपने रियल इमोशंस चेहरे पर रख के सेल्फी खींचते हैं, फेक है वो सेल्फी, वो रियल इमोशंस नहीं है वो। अगेन 2 दिन पहले का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड किया, और उसके अगले दिन के उसके रील्स और उसका पेज देखो, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे सुसाइड। आपको लगता है कि 10 घंटे में उसने सुसाइड प्लान कर लिया? वो पहले से चल रहा था वो, पर स्टिल रील्स कैसे आ रहे हैं, कॉमेडी। तो हमको उसको देखे क्या, सी हाउ हैप्पी, क्या लाइफ है उसका। वो इंस्टाग्राम पे उस पे जो ना बीएमडब्ल्यू का फोटो डाला, क्या जीवन है। अरे बीएमडब्ल्यू लोन पे लिए, पेपर डालो उसको, बोले डालेगा कोई? भैया गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, ऊपर खींच के बढ़िया फोटो है, उसके पेपर भेजो ना थोड़े। और मान लो कैश, मान लो पूरा पैसा दे के लिया है, तो मेरे को बताओ कि वो पैसा कमाने में कितने रात रात भर तुम जगे हो, तुमने क्या क्या संघर्ष किया है, क्या क्या गलत काम किए हैं, तब जाके वो बीएमडब्ल्यू है, वो बताओ मेरे को। उसकी नहीं दिखाएगा वो जस्ट आपको गाड़ी दिखाएगा। वर्ल्ड टूर किया, फोटो दिखाएगा, अरे वो बिल दिखाएगा, और वो बिल का पैसा कहाँ से आया था दिखाओ, नहीं दिखाएगा कुछ। और हमें क्या लगता है, क्या लाइफ है, नहीं, वो जो दिख रहा है ना फेक, वो केवल 5% है उसके जीवन, 5 भी नहीं, 1% है। 99% यू डोंट नो इन लाइफ। ये एक आइडेंटिटी देता है वो। भगवत गीता ऐसा नहीं है, भगवत गीता आपको आईना दिखाएगा, भाई देख तेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, और वो कमियां दूर करने का उपाय भी बताएगा गीता। पहले प्रॉब्लम बताएगा गीता, फिर सॉल्यूशन बताएगा। कैसा होता है सोशल मीडिया में, है? और आप देखिए डिस्ट्रॉय टाइम एंड फोकस। अब आपके लिए असाइनमेंट है ये, आप सर्च करना कि आज से 10 साल पहले जो हमारा अटेंशन स्पान समझते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे कर पाने का जो टाइम होता है, वो कितना था 10 साल पहले, और आज का कितना है। आप रिसर्च कर लेना, सारे डेटा मैं बताऊंगा, अच्छी बात नहीं है, आप रिसर्च करना, इट इज शॉकिंग कि हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फोकस कम हो रहा है। और पढ़ाई के लिए यही 2 चीज चाहिए, कंसंट्रेशन एंड फोकस। और रीजन क्या है वो भी सर्च कर लीजिएगा, आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रही हूँ। और गीता टीचेस डिसिप्लिन, गीता डिसिप्लिन सिखाता है। तो ये गीता में भगवान का वार्निंग है, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ कंडीशन। भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अर्जुन, या हम सब अर्जुन के थ्रू, कि अगर मैं जैसे गीता में बोला ऐसा अगर आप करते हो, तो भगवान बोले मैं गारंटी लेता हूं, पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स, मैं गारंटी लेता हूं।
कि दुनिया में कितना बड़ा मुसीबत आ जाए तुम पास हो जाओगे, ये मेरा गारंटी है। क्यों? अगर गीता को फॉलो किया और नहीं किया तो वार्निंग देख लीजिए। बट एक्ट थ्रू फॉल्स ईगो, नॉट हियरिंग मी, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे गीता की, यू विल बी लॉस्ट, हो जाओगे। हो जाओगे मतलब संसार में तो रहोगे, आधार कार्ड वगैरह भी रहेगा, मेंटली यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी लॉस्ट। सक्सेस बहुत होगा, लाइफ विल बी लॉस्ट। और आपको जानना है तो देख लीजिए प्रैक्टिकल, ये हाँ आगे ये वाला बीमारी भी होता है। कितना भी डेटा बता दो, कितना भी गीता के बारे में इंस्पायर करो, सीधा मंत्र ऐसे बोल के ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। बताया ना अभी वो वाला, बोले प्रभु जी एक ब्रह्मास्त्र हम भी रखते हैं। कौन सा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप कितना भी बहुत अच्छा बताए, मजा आ गया, बट क्या है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब इसको क्या पीपीटी दिखेगी, इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगर आपको बोला जाए कि आप अपने जीवन में देखिए कि क्या आप पूरे दिन में सारे इंटरेस्ट है वैसे ही कार्य करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर ऐसा आप मान लो सर जी बोल दे कि हम बहुत अच्छा है, कल से जिसको इंटरेस्ट है वो कॉलेज आए, फिर सर भी फ्री, कॉलेज भी फ्री, लाइट बिल भी बच जाएगा। अगर ऐसा बोल दिया जाए, इंटरेस्ट है तो इक्के दुक्के तिक्के मिलेंगे, बाकी सर हमें तो क्या इंटरेस्ट है। आपने दिल की बात कह दी, बड़े अच्छे सर हो आप, पर बेटा करियर गया तेरा। तो आप देखो, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जनरली 70 to 80% ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और हम करते हैं क्यों? क्योंकि वो अच्छा है हमारे लिए। कॉलेज आने में मन मना करता है, इंटरेस्ट नहीं, पर हम आते हैं क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा है फ्यूचर में। सुबह जल्दी उठने में इंटरेस्ट नहीं है, पर हम उठते हैं तो, क्योंकि वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। समझ रहे हैं? तो भगवत गीता में जैसे 6 स्टूडेंट ने बोला था कि दे आर रीडिंग स्पिरिचुअल, इट इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, पर जो बाकी को नहीं है इंटरेस्ट तो भी पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा है गीता पढ़ना। तो इंटरेस्ट, ये सुनने के बाद अगर इंटरेस्ट आ गया तो, पर इतना सुनने के बाद भी कोई बोल रहा है अरे नहीं यार नहीं पढ़ना गीता, नहीं पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। एंड ये प्रैक्टिकल स्लाइड है अभी, देखिए भगवत गीता का प्रूफ आपको दे रहा हूं कि क्यों आपको गीता पढ़ना है, रीजन दे रहा हूं आपको गीता पढ़ने का कि क्यों आपको डेली गीता पढ़ना है। कि देखिए आप यहाँ पे आपको कौन सा प्रॉब्लम है, आप जस्ट नाम बताइए खाली, कौन सा मेंटल इश्यू है, सीधे सॉल्यूशन इज है। पीछे कुछ नया प्रॉब्लम है, मतलब बातें हो रही थी, बोले प्रभु जी हमारा वाला रह गया। इतना ही स्लाइड है ना भाई, आएगा, सुन लीजिए वो भी आएगा। आपको गुस्सा आ रहा है, देखिए सॉल्यूशन। कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन। ईर्ष्या हो रही है, दूसरों का अच्छा देख नहीं पाते, सॉल्यूशन। डिमोटिवेशन, डर लग रहा है जीवन में क्या करे क्या नहीं करे, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप होपलेस हो गए, कोई आशा नहीं दिख रही है, और या तो आपको माइंड कंट्रोल, आपको आलस आ रहा है, लेजीनेस, अकेलापन लग रहा है, टेम्पटेशन हो रहा है, शांति नहीं हो रहा है, सेक्स डिजायर परेशान कर रहा है, देखिए आप डिस्क्रिमिनेटेड फील हो रहा है, डिमोट क्या। अब देखिए दुनिया के 800 करोड़ लोगों के ऑलमोस्ट सारे मेंटल इश्यूज कवर कर लिए, ऑलमोस्ट सारे। कोई बोलेंगे काफी छूट गए, तो भैया ये 50 श्लोक ही और 650 है, और 650 है, सोचिए 50 में तो भैया तुम्हारा 80-90% का समअप कर लिया, बाकी 650 में रह गया ना, वो भी हो जाए, और जो हमें नहीं पता है वो भी हो रहा है कवर। ये है गीता। आपको लगता है कि क्यों 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 नहीं, आप बताइए क्यों नहीं पढ़ेंगे गीता अभी, बताइए आप में से इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है अभी आप फेस कर रहे हो सकता है, या तो हो सकता है आपको पास्ट में आया हो प्रॉब्लम, या भविष्य में इसमें से कुछ जरूर आएगा। कि डरा नहीं रहा हूं, कि आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूं, कि इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस, और उस समय पे इसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं करेगा, इसीलिए अभी से पढ़ लो। पानी पहला पाड़ बांधो, गुजरात।
तो बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही सीख लेगा ये सब कि भाई जब आने वाला है यार, तो क्यों पहले से अपने आप को तैयार ना करें। जब आपको पता है कि लाइट जाने वाला है तो पहले से ही टॉर्च तैयार रखेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति। तो आप गीता पढ़ के अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और इसका भी वैज्ञानिक प्रमाण देता हूं, ये तो गीता से, ये लो उसका वैज्ञानिक प्रमाण। ये नीचे लिंक दिया है, ब्लर हो रहा है इतना दिख नहीं रहा है। दुनिया के 83 बड़े बड़े स्कॉलर्स ने रिसर्च किया था इस गीता के ऊपर, और 83 के नाम इस लिंक पे सबके नाम दिए हैं। सारे नाम मैंने चेक किए, एक भी हिंदू नहीं है, एक भी भारत वाला नहीं। वरना बोलोगे वो तो बोलेगा ही ना गीता के बारे में, तो सुन लीजिए। नो हिंदू, नो इंडियन, सबके सब बाहर वाले और वॉट एवर धर्म के। क्या बोल रहे हैं? पहला ग्राफ जो है वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट का है, बॉडीली इफेक्ट। दूसरा है माइंड एंड स्पिरिट, स्पिरिट मतलब इमोशंस, मन, ये मन और भावनाएं, और ये बॉडी। ये नीचे जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट्स है, गीता पढ़ के प्रैक्टिस करने के 2.53 है। और ये रिसर्च के अलग अलग डॉट्स है, उसको कनेक्ट किया, कॉमन लाइन खींचा, आप देख रहे हो। आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जितना ज्यादा गीता को फॉलो करेंगे, देखो आपका बॉडी का ग्राफ कैसे जा रहा है, और देखिए आपका माइंड, ये मतलब स्टेबिलिटी, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी देखो कैसे हो रहा है। जितना ज्यादा गीता को अप्लाई करोगे आप मेंटली स्टेबल, कुछ भी कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आप अंदर से नहीं टूटोगे। बाहर भले सब अस्त व्यस्त हो जाए, अंदर से आपको कोई हिला नहीं, अनशेकेबल वो होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च। और अब उल्टा पकड़ते हैं इसको। आप जितना ज्यादा गीता को, स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करोगे, दूर भागोगे, देखो आपका स्टेबिलिटी क्या होगा। देख रहे हैं? आपको मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगे, बॉडीली इश्यूज होंगे। बॉडीली मतलब हेल्थ वाले इश्यू नहीं, दूसरे अनईजी अनरेस्ट वाले इश्यू। जितना गीता से दूर जाएंगे, देखिए आपका ग्राफ नीचे जाएगा। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपका लाइफ, आप, मेरा काम है बताना, मैं तो बता रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको गीता पढ़ना शुरू नहीं का इंटरेस्ट नहीं रहा, नो प्रॉब्लम, आपका लाइफ है, आपको मुबारक। हम कौन होते हैं आपको जबरदस्ती करने वाले। पर एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ सोसाइटी, मैं आपको एक एज ए जेंटलमैन आपको बता रहा हूँ कि आपको गीता पढ़ना चाहिए, गीता सीखना चाहिए, फायदे में रहोगे। नहीं, इसके बाद भी नहीं लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। एंड देन लास्ट, नो कॉस्ट एंड नो हार्ड वर्क। गीता पढ़ने के मोर रीजन, कोई पैसा नहीं देना है और कोई हार्ड वर्क, कि भी दूसरा अध्याय समझना है तो 5 दिन के उपवास लगेंगे। 5 दिन उपवास करोगे, छठे दिन पे दूसरा अध्याय समझना शुरू होगा तेरा। और तीसरा अध्याय बोले वो तो हिमालय में समझ नहीं है, इधर भूल जाओ। और पांचवा छठा अध्याय, वो तो भाई संसार छोड़ के हरिद्वार जाना पड़े आश्रम में बाबा जी के, ऐसा कुछ है। नो हार्ड वर्क, जस्ट भगवत गीता ओपन करो, पढ़ो, समझो, अप्लाई करो, इट इज एज सिंपल एज दैट। नो कॉस्ट, नो हार्ड वर्क, एंड नो नेगेटिव रिजल्ट स्टिल, आज तक एक भी कि भाई पति पत्नी में डाइवोर्स हो गया, क्यों? वो रामायण यार, बहुत बड़ा गलती किया, पति पत्नी साथ में रामायण पढ़ते थे, डाइवोर्स लेने की नौबत आ गई। अब भाई दो भाई क्यों झगड़ रहे, महाभारत पढ़ लिया भाई, पांडव कौरव, हमने भी कर लिया, फिर पांडव कौरव पढ़ के सुना कभी? तो एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। देन सक्सेस रेट कितना है? 100%। जिन जिन लोगों ने गीता पढ़ा, हर एक व्यक्ति को फायदा मिला है। तो आप बोलोगे अरे यार हमने तो बाबा जी देखा, बाबा जी ने मर्डर कर दिया गीता पढ़ के। अब तो बाबा जी था ही नहीं कभी, वो बोगस था, है। तो बोगस तो इंजीनियर भी होता है, बोगस तो डॉक्टर भी होता है। मतलब बोगस किस फील्ड में नहीं है बताइए ना आप। तो गीता के फील्ड में भी बोगस है, प्रॉब्लम क्या इधर ज्यादा है? इतना ही प्रॉब्लम है। तो वो आपका काम है कि सही कौन है गलत कौन है पता करना गीता के बारे में। वो आपका जिम्मेदारी है। डॉक्टर के पास जाते थोड़ी आंख बंद करके चले जाएंगे, पहले पता करते हैं ना सही है डुप्लीकेट है। तो गीता आप किसी से भी नहीं सीख सकते, वरना 6 महीने लगे मेरे साथ चीटिंग हुआ होगा ही ना भाई, तुमने चेक किया था ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है गीता सिखाने के लिए? कोई भी कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो वो आपका काम है। पर जिन जिन ने पढ़ा है जेन्यूनली गीता, अप्लाई किया, सबको फायदा हुआ 100%। एंड नॉट अ सिंगल वैलिड रीजन फॉर रिजेक्शन। अभी कल का निर्मा का बात बता, एक लड़का ऐसे
बीच में स्लाइड इंटरेस्टेड वाली स्लाइड में खड़ा होकर बोला मैं गीता में नहीं मानता, ऐसे पूरा ऐसे। तो अच्छी बात है यार, नहीं मानते। तो मैंने कहा अभी मैं आपको 2 सवाल पूछूं जिसके आप अगर जवाब दे पाए तो। वो बोला पूछिए। तो मैंने कहा कि तुम क्यों गीता में नहीं मानते, क्या तुमने गीता पढ़ा आज तक? मैंने कहा पहला सवाल है मेरा कि क्या तुमने आज तक गीता पढ़ा है? वो बोले नहीं। तो मैंने कहा तुम किस आधार पे बोल रहे हो कि तुम गीता में नहीं, कुछ आधार तो होगा ना भाई तुम्हारा, तुम जो बोल रहे हो इतना बड़ा वाक्य कि नहीं मानते, तो मेरे को आधार दो ना थोड़ा, कि आखिर तुमको गीता के कौन से श्लोक में प्रॉब्लम हो, कहाँ पे प्रॉब्लम जिसमें तुम नहीं मानते, जबकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। ही वो स्पीचलेस, कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ कुछ बताओ ना, इतना बड़ा तुम वाक्य बोल रहे हो पूरे क्लास के बीच में कि नहीं मानते, तो साबित करो ना। मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा माइक देता हूँ, साबित करो, हम सब सुनते हैं क्लास वाले। और दूसरे 2 दिन तो बोला बोल भी तो सही बात है सर आपका, साबित करो भैया। तो नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। तो किस आधार पे बोल रहे हो भाई नहीं मानता मैं? फिर मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। मैंने कहा दूसरा प्रश्न है अभी, मैं तुमको गीता देता हूँ, या मेरी वाली नहीं लेना है, जहां से लेना है डाउनलोड कर लो, जो करना है जिस बाबा से लेना है गीता ले लो। कुछ हो गया क्या? क्या? हाँ, कई लोग उल्टा मीनिंग भी लेते हैं, समझ रहे हैं? नहीं उसमें, नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है, जो लोग हंस रहे हैं उसका। तो आपका भविष्य भी ऐसा ही होगा फिर, डबल मीनिंग भविष्य ही होगा फिर। इट इज अ सीरियस मैटर। डबल मीनिंग लेना है लीजिए, मैं तो अभी चला जाऊंगा आधे घंटे बाद, मेरा अपना दुनिया है, नो प्रॉब्लम। योर लाइफ विल बी एट रिस्क इन डबल मीनिंग। पता नहीं चलेगा जिंदा रहो कि सुसाइड करो, डबल मीनिंग हो जाएगा। वही बात है। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जो भगवत गीता चाहिए आप ले लीजिए, और पूरा इंटरनेट रिसर्च कीजिए, जिस पीएचडी स्कॉलर बाबा जिसका हेल्प लेना है लीजिए, आप 700 श्लोक पढ़िए, मैं आपको मेरा नंबर शेयर करता हूँ, उसके बाद आप बताइए कि आपको कौन सा श्लोक गलत लगा। एक मैंने बोला श्लोक नहीं, केवल एक शब्द आप गलत लेके आइए जो गीता में गलत है, हम चर्चा करेंगे। नहीं पढ़ा ठीक है, अब पढ़ने के बाद भी चर्चा करने के लिए रेडी आओ लेके, लेट्स डिस्कस कि कौन सा शब्द गलत है। तुमको नहीं मिलेगा, मैंने कहा एडवांस में बता रहा हूँ, पूरा दुनिया खोज लो, तुम एक शब्द गीता का तुम गलत साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि है ही नहीं। साबित कैसे करोगे? तो कोई रीजन नहीं है हमारे पास गीता नहीं पढ़ने का, एक ही रीजन है कि हम आलस करते हैं, या हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम। तो हम गलत यूज करते हैं फ्रीडम का कि नहीं नहीं पढ़ना है मुझे, तो अब फ्रीडम है अब हमके पास, तो हमें कैसे यूज करना अपने ऊपर है। तो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट अर्जुन का, एक बार स्ट्रेस आया सीख लिया, दूसरी बार जब द्वारका से स्ट्रेस आया केवल याद किया। तो पीछे वाले स्लाइड में आपको सारे बताए ना, एक बार अगर आप सीख लिए, आपको लगता है बार बार गीता खोलना पड़ेगा? मतलब जस्ट थिंक, क्या बुक है ये। 700 श्लोक सीखने में 1-2 साल इनफ है, पूरा मरते दिन तक बेनिफिट लेंगे आप। और अभी तो ऑलमोस्ट आपका मेजोरिटी जीवन बाकी है आपका। तो सोचो शुरू में ही, मतलब आपका एक्चुअल लाइफ शुरू होने से पहले ही आपको सारे टूल मिल गए, तो वो लाइफ कैसा होगा। जस्ट कल्पना कीजिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, जबरदस्त लाइफ होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आई नो सॉल्यूशन एडवांस। पर वो तब होगा जब आप ये 4 साल में गीता सीखने में टाइम देंगे, तब होगा वो। एंड फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब देखो विश्वकर्मा कॉलेज में पिछले 10 सालों से, 2015 से हमारा यहाँ पे हर हफ्ते प्रोग्राम होता है। जैसे ये तो ओरिएंटेशन है, कॉलेज के बीच में आए हैं, पर अगले हफ्ते से हर हर एक साल हम नया बैच शुरू करते हैं। तो अगले हफ्ते से हम भगवत गीता कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिखाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, देखो पूरे हफ्ते में 2 घंटे देने हैं केवल, पूरे हफ्ते में 2 सेमिनार होते हैं, एक सोमवार को होता है और एक गुरुवार को होता है, 1-1 घंटे का, वो भी कॉलेज के बाद, बीच में नहीं। पूरे हफ्ते में आपको क्या करना है, सेमिनार में आना है, और हर एक श्लोक के ऊपर हमारे पास पीपीटी है, वीडियो है, कार्टून है, बहुत सारा मटेरियल है, उसके थ्रू समझाते कि भाई ये श्लोक तुम्हें कैसे रिलेवेंट है, ये कैसे सीखना है। और उसके बाद हम स्नैक्स भी देते हैं, मतलब
थोड़ा बहुत जो भी प्रसादम वगैरह, तो हम रेडी है, फ्री है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट पूरा हमारी ओर से, जिसको सीखना है उसके लिए। पूरे 4 साल का कोर्स हमारे पास डिजाइन किया हुआ है, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक। और आपको खाली क्या करना है, 2 घंटे का टाइम देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और लास्ट पॉइंट, फर्स्ट ट्राई इट फॉर 1 मंथ देन डिसाइड। अगेन घड़ी डिटर्जेंट क्या है उसमें पहले, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो घड़ी वालों का नहीं है, प्रॉब्लम वो है। अब भागवत पुराण पढ़ेंगे ना, जो 5,000 साल पहले लिखा है, तो उसमें 12 वॉल्यूम है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें 12 वॉल्यूम है भागवतम में। तो 10 वॉल्यूम में पहले लिख दिया सब कुछ, फिर 11वें वॉल्यूम में ये श्लोक है, भक्ति परेशानुभाव। मतलब कि ये पहले 10 पार्ट में जो वर्णन किया ना, बोले पहले इसका इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और घड़ी वाले बोल रहे हमारा पाउडर इस्तेमाल करो फिर भी। कहाँ से कहाँ मतलब लोग ले जाते हैं चीजों को। वो भागवत के बारे में श्लोक बोल रहा है, ये वाले इधर जोड़ दिए। मतलब ठीक है, डोंट, घड़ी डिटर्जेंट यूज करने वाले डोंट गेट इट पर्सनल, ठीक है। उसी तरीके से LIC का इंश्योरेंस लिया है, वो भी डोंट गेट पर्सनल। LIC वाले बोलते हैं योगक्षेम वहामी अहम। पता है वो कौन बोला है? भगवान गीता में बोले तेषा भी नित्य युक्ता नाम ये जना परि उपासते। भगवान बोले कि जो लोग पूरा जीवन गीता को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए योग क्षेम वहामी अहम। योग मतलब तुम्हारे पास जो है, क्षेम मतलब जो जिसकी तुम्हें जरूरत है पर है नहीं, बोले वहामी। वहामी मतलब वहन करना, अहम। भगवान बोले मैं दूंगा, जो है उसको प्रोटेक्ट करूंगा, जिसकी तुम्हें सही में जरूरत है वो मैं ला कर दूंगा। भगवान गारंटी दिए। LIC वाले बोले हम करेंगे। होगा LIC वालों से, कर पाएंगे वो? तो ओरिजिनली भगवान ने बोला है वो, कि मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे योग और क्षेम के वहन करने का, प्रोवाइडेड यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन नाउ, टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड बिफोर द इंटरनेट डज। कहीं का तो डज हो गया होगा, बोले प्रभु जी हमारा तो डज ही हो गया है, इंटरनेट ने टेक ओवर कर लिया है हमारा, है। तो दुख की बात है। ज्वाइन द भगवत गीता कोर्स, चेंज योर फ्यूचर देन, बिकॉज वन स्क्रॉल कैन डिस्ट्रॉय योर पीस बट वन वर्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो जैसे मैंने बताया, एवरी मंडे एंड थर्सडे क्लासेस होते हैं हमारे यहाँ आपकी ही कॉलेज में गीता के ऊपर। अब कैसे होंगे वो क्लासेस, क्यों होंगे, उसका जानकारी अब कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। पर अभी इतना, ये दिन फिक्स है, सोमवार एंड गुरुवार, वो भी 1-1 घंटा आफ्टर कॉलेज अवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था कि पहला पहिया तो आपका चल ही रहा है अच्छे से, दूसरे पहिए पे केवल 6 विद्यार्थी बोले ध्यान दे रहे, बाकी के नहीं दे रहे। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दूसरे पहिए पे भी आप सब ध्यान दीजिए, तभी आपका जीवन वास्तव में आगे जाएगा, वरना गोल गोल ही चलता रहेगा, वो सक्सेस के ट्रैक पर लाइफ मिसिंग हो जाएगा, है। तो आप देखो, अभी हम आपको जो है ना एक फीडबैक फॉर्म देंगे, ये रहा। ये फीडबैक फॉर्म आप भर सकते हैं, अपना नाम, कहाँ रहते हैं, पता वगैरह। फिर आप लिख सकते हैं सेमिनार में आपको मैंने बहुत कुछ बताया, कौन से 2 पॉइंट आपको अच्छे लगे। फिर क्या आप हमारे भगवत गीता सर्टिफिकेट कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, यस और नो। वो 100 रुपये दिख रहे हैं, तो आपने तो बोला था फ्री में, तो क्या दिख रहा है? मेरे को ही दिख रहा है कि आप सबको दिख रहा है भाई, आसपास वाले? बोले देखो, इतना अच्छा अच्छा सर जी आपने बात किया, लास्ट आप नीचे आ गए, पैसा लाओ। गीता के नाम पे धंधा चल रहा है, आप जो बोले वही आप खुद ही कर रहे हो। तो लेट्स मेक इट क्लियर कि हम सेशन के बाद स्नैक्स देते हैं, जंक फूड सारी बात। तो आप 1-2 बार आएंगे ना, 100 रुपये आपके पैसा वसूल। और सेशन तो 4 साल चलेंगे, सोचिए कितना पैसा वसूल होगा, ब्याज का ब्याज का ब्याज भी वसूल हो जाएगा। तो बोल प्रभु जी 100 रुपये फिर क्यों रख रहे हैं? पहले फ्री में ही करते थे, तो फ्री में करते पता क्या होता था? अरे लिखिए नाम सर, इसमें क्या सीख लेंगे गीता?
आप भी याद करेंगे कि मिला था कोई विश्वकर्मा में। डालिए हमारा नाम आपके डेटाबेस में, और तो टोटल हम 800-900 लोगों को एड्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को, तो 600-700 तैयार हो जाते थे। तो हम तो है बड़े बड़े ट्रक भर के आते थे 700 लोगों का, दाबेली वड़ा पाव पिज्जा लेके, दिखते थे 80। किधर गए यार, समझ रहे फ्री में क्या होता है? पीपल वैल्यू नहीं करते फ्री की चीज का आजकल। कोई बोले प्रभु जी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब फ्री में है, हम इतना वैल्यू करते हैं उसका। आप बोल रहे हो यार, बोले आप तो कुछ भी बोल रहे हो, और माइक दिया तो केमिकल लोचा लग रहा है आपके दिमाग में, जिस तरीके से आप बोल रहे हो पिछले 1 घंटे से यार। ध्यान से देखिएगा, when something is free you are the product। समझिएगा इस बात को, बहुत गहरा बात है ये। when you are getting something is free, that means you yourself are the product। फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फ्री नहीं है, वो आपका टाइम खा रहा है। टाइम इज मनी। इवन टाइम इज मोस्ट और मोर वैल्यूएबल देन मनी। टाइम इज मनी एक्चुअली। You are losing money by investing time in the name of entertainment, and in return you are band बजाइंग your mind। फ्री कैसे हुआ? तो पैसा हम इसलिए लेते हैं 100 रुपए, ताकि हमें पता चले कि भी कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, और हमें सीटिंग अरेंजमेंट का पता चले, कितने लोगों के लिए स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, क्या करना है। तो मतलब हमारी एक फैसिलिटी के लिए हमें पता चले, ऑर्गेनाइज इसीलिए लेते हैं। और अभी पहला कोर्स में हमारे 8 सेशन होंगे। पहला कोर्स 3 महीने का है, और कोर्स के बाद हम सर्टिफिकेट भी देते हैं जो आपको जीटीयू में काम में आएगी। जीटीयू में आपको 100 पॉइंट लेने होते हैं ना बाहर से, तो हमारे सर्टिफिकेट से 15 तक पॉइंट मिलते हैं। बोले हाँ अब तो जरूर कोर्स करेंगे। पॉइंट वाले मत आना, मैं तो खाली साइड बेनिफिट्स बता रहा हूँ, पॉइंट के लिए मत आना प्लीज। तो वो कोर्स के बाद अगर आपको लगे तो 100 रुपए वापस भी दे देंगे, आप रिफंड चाहते हो तो। मतलब हम पैसों के पीछे नहीं है गीता के नाम पे, समझ लीजिए उस बात को। पैसा एक टूल है सिंसियरिटी चेक करने। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यस लिख सकते हो, और आपका कोई प्रश्न और सुझाव, कोई फीडबैक देना हो, अच्छा बुरा जैसा भी, मतलब मैंने सेशन आपको कुछ बुरा लगा हो बता सकते हैं, या मैंने कुछ बोला हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप जो लिखेंगे मैं पढ़ता हूँ, जो पॉजिटिव है उसको और अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, और जो आप नेगेटिव लिखते हैं ना तो मैं सही में उसके ऊपर सोचता हूँ और फिर उसको इम्प्रूव, क्योंकि लर्निंग इज अ एंडलेस प्रोसेस। मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप और बेहतर बना सकता हूँ। तो आप डरिए मत, आप नेगेटिव आपको कुछ लगा है तो आप बेझिझक, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन देना है आपको। जो पॉजिटिव लगा हो पॉजिटिव, नेगेटिव लगा हो नेगेटिव, सीधी सी बात है। तो आप सुझाव प्रश्न है तो दे सकते हैं। और आप कोर्स में एंट्री करना चाहते हैं तो आप यस टिक कर दीजिए। और 100 रुपए देने में काफी सारे ऑप्शन है, अगर अभी आपके पास है तो अभी दे सकते हैं। ऑनलाइन करना हो तो हमारे वॉलेंटियर है, आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स है, उनके क्यूआर कोड पे दे सकते हैं। अभी नहीं है बाद में दे दीजिएगा। पैसा इज नॉट अ एनी काइंड ऑफ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, कई सारे लोगों के नाम लिए, कई उदाहरण लिए। देखो किसी को नीचा दिखाना, किसी को जज करना, किसी की बुराई करना, वो मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। मैं आपको यहाँ पे गीता का महत्व समझाने आया था। पर अगर मैं आके गीता के श्लोक बोलता तो आप बोर हो जाते। तो मैंने गीता के सिद्धांत बताए, और वो सिद्धांत आपको अच्छे से बता सकूं इसलिए मैंने कुछ उदाहरण लिए। पर फिर भी वो उदाहरण से आपको बुरा लगा हो, आपको हर्ट हुआ हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको हर्ट करना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। तो आप मेरा भाव समझने का प्रयास कीजिए कि आई आई जस्ट वांट टू हेल्प यू एंड ट्राई टू कन्विंस यू दैट यू शुड रीड भगवद गीता डेली। तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से सारे स्टूडेंट्स जो है वो आप गीता सीखने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वी आर ऑल्सो रेडी। तो आप यस टिक करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसको हम कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, कौन से टाइम पे लेक्चर होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो सारा कन्वे होगा मैसेज आगे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो वो आप धैर्य थ्रू दे देंगे, आप फीडबैक फॉर्म सबको बांट देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो अच्छे शब्दों में लिखिएगा थोड़ा, वरना कई बार अच्छा लगता है तमिल तेलुगु लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या उर्दू पढ़ रहे हैं, तो थोड़े अच्छे हैंड राइटिंग में, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और अगेन आपका जो मैनेजमेंट स्टाफ है, कॉलेज है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।
जस्ट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है खाली। अभी आपका छूटने का टाइम तो हुआ नहीं है, बोले मर गए। कुछ नया लेके आए स्वामी जी। नया नहीं लाया हूँ। अभी हमारे पास आधा पौना घंटा है, तो मैं अभी कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, और सही में वो वीडियोस वेरी लाइफ लेसन सिखाने वाले हैं। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो, डरो मत, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। अभी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, तो थोड़ा माइंड रिफ्रेशिंग है वो, एंड साथ में बहुत बड़े लेसन है उस वीडियो में। तो आप 5 मिनट फीडबैक फॉर्म भर लीजिए, फिर जब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े 2-3 वीडियो, चार चार 5-5 मिनट के, फिर आप जा सकते हो। हरे कृष्णा। माउस कहाँ रखा? जैसे देखो, ये जो वीडियो है ना, इसमें ये मेरा नहीं। ये अपनी ड्राइंग वाला है। ये तो ये जो है ना, आप फीडबैक फॉर्म भर लीजिए अभी अच्छे से। ये पंजाबी सॉन्ग है, तो 5 मिनट का है, पर बहुत अच्छा मैसेज